Hello. Good, good morning, every fellow body. Hello. Good evening, fellow coders. Hope all are safe and healthy. I am Janvi Desai from GC Rajkot, and I will be a host of today's session. So, DSA Carnival is the 17 days of bootcamp where we cover all the topics of data sources and algorithms from basics to the advanced. And it's great chance to learn from people who create a great impact on millions of people by just coding. Without taking too much of time, I will hand I will hand over to Karthik Arora sir. He 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 is the IT undergraduate from Delhi Technological University and SDA at Amazon previously worked at Morgan Stanley in YouTube teaching and algorithm and data structure. Previously a mentor coding blog candidate master and at the Red Courses. Before joining Future, let me remind you that that quiz winner of the day before yesterday will be announced at the end of the session. So keep watching till the end. Now let us start the today's topic, dynamic programming with Karthik Arora. Karthik, over to you. Thanks, Janvi. So, hey everyone. So, we'll start in a minute or two. How many of you already here know about dynamic programming or at least the basics? Okay. Yeah, hey Raman, hey Palak, hey Harshil. Okay, Harshil knows the basics, that's good. So, in a minute or two, I'll give you an overview of what I've planned for this session. The overview basically what are we going to cover, what are the further things that you can do to improve your dynamic programming, and why should you learn DP, right? So, okay, Palak says she is already here from my channel, that's good to know. Okay, fine. So one more thing, how many of you are here who are not comfortable with Hindi? We'll see whether we can keep this session in Hindi or English depending on that. Is there anyone who's uncomfortable with Hindi? Fine, I think we can choose to use the language as comfortable, both in the comments and from my side. I'd like to keep the session as interactive as possible. So guys, शुरू करते हैं. I'll share my screen. Fine. I guess most of the people here would be comfortable with both. Fine. Okay. So I'll share my screen and you can let me know whether everything is as expected or not. Okay. So is my screen visible? I hope yes. And meanwhile, I'll keep reading the comments as well on my mobile. So I hope that's fine with you. You might see me looking down towards my mobile a few times. That's only to read your comments. Okay. So first of all, why dynamic programming? So this is one of my favorite topics when it comes to algorithms. And I've spent way too much time teaching DP and learning DP. And this is one of my favorite topics. Why, I'll tell you in some time. But here's my channel. You can look at it if you want. I've made a lot of content on dynamic programming. And today in this video, I'll try to introduce you to the same concept that I've learned. Okay. तो अब इस सेशन के लिए क्या प्लान किया है मैंने ऑल्सो बीच बीच में गाइस वी कैन राइट हाँ तो बीच बीच में तुम लोग क्वेश्चंस पूछते रहना आई लुक एट द क्वेश्चंस इन एवरी 2 to 3 minutes ताकि एक ना इंटरेक्टिव सेशन बना रहे ये सेशन एक फेस टू फेस होता तो बहुत बेटर रहता बिकॉज सामने सामने बात हो पाती है इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या रहती है कि कमेंट्स देख के रिप्लाई करो बट आई ट्राई माय बेस्ट कि ना सेशन इंटरेक्टिव रहे ना कि एक वीडियो की तरह रहे कि मैं बस बोले जा रहा हूँ तुम लोग बस सुने जा रहे हो फिर उससे बेटर तो फिर रिकॉर्डेड वीडियोस ही हैं तो कमेंट्स एवरी 2 to 3 minutes में एक बार नजर मारूंगा जरूर तो तुम्हें जो भी डाउट्स हो साइड बाय साइड पूछते रहो
कोड भी लिखेंगे, सब कुछ प्रॉपर स्टार्ट टू एंड करेंगे। अब एक बार ओवरव्यू देखते हैं सेशन में करने क्या वाला है। सबसे पहले तो हम बेसिक्स ऑफ डीपी पढ़ेंगे, 2-3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स करेंगे। मेजर आइडिया क्या है कि तुम्हें पता चल जाए कि डीपी के लिए तुम्हें क्या आता होना चाहिए, एंड जो 2-3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर तुम्हें वो पता चल जाएंगे तो तुम आगे भी पढ़ पाओगे अपने आप से भी, बिकॉज एक सेशन में पूरा डायनामिक प्रोग्रामिंग करना तो इम्पॉसिबल है, एक हफ्ते में भी इम्पॉसिबल है, बट एक आइडिया, एक डायरेक्शन देने की ट्राई करूंगा मैं कि तुम्हें पता चल जाए हाँ डीपी के लिए मुझे डीपी स्टेट्स और मुझे रिकरेंस ये सब पता होना चाहिए, प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में कैसे तोड़ते हैं ये पता होना चाहिए, बैक ट्रैकिंग आती होनी चाहिए। ये सारी चीजें मैं तुम्हें डायरेक्शन दूंगा और ये बताऊंगा कि आगे क्या क्या एक्सप्लोर करने के लिए है। मेरा तरफ से इस सेशन का गोल ये रहेगा कि तुम्हारे को, अगर तुम्हें अभी जीरो नॉलेज है डीपी की, तो तुम्हें इजी प्रॉब्लम्स सॉल्वेबल हो जाएं और मिड प्रॉब्लम्स अप्रोच करने लायक हो जाओ, तुम्हें एक बेसिक आइडिया पता चल जाए कि तुम बाद में खुद से पढ़ो तो प्रॉब्लम नहीं है। मेरी तरफ से इस सेशन का गोल इतना है बस, राइट। अब प्री रिक्विजिट्स क्या है कि तुम्हें ये वीडियो कंटिन्यू करनी चाहिए। एक, तुम्हें डिवाइड एंड कॉन्कर की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। डिवाइड एंड कॉन्कर की नॉलेज तुम्हारी डीपी पढ़ के बढ़ेगी, एंड ट्रस्ट में डिवाइड एंड कॉन्कर से ऊपर कुछ भी नहीं है पूरे एल्गोरिथम्स में, एज फार एज आई नो। डिवाइड एंड कॉन्कर इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टेक्निक आई हैव लर्नड व्हेन इट कम्स टू एल्गोरिथम्स, एंड डीपी पढ़ने से डिवाइड एंड कॉन्कर आपका ज्यादा स्ट्रांग होगा, because overall dynamic programming is nothing but divide and conquer with caching, that's it, right? So divide and conquer is really very important. तुम्हें बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डिवाइड एंड कॉन्कर है क्या। अगर तुम्हें वो है तो उसके ऊपर डीपी उतनी मुश्किल नहीं लगेगी। इनफैक्ट डीपी पढ़ोगे तो डिवाइड एंड कॉन्कर ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा साइड बाय साइड। नेक्स्ट, अब तुम्हें अगर मैं कोई प्रॉब्लम दे दूं, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स द प्रॉब्लम माइट बी, यू शुड बी एबल टू कम अप विद अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। चाहे रिकर्सिव वे में ब्रूट फोर्स हो, वर्स्ट पॉसिबल सॉल्यूशन हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं है, बस करेक्ट होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू कम अप विद दैट। अगर मैं तुम्हें कहूं कि मैक्स सम सवेरे निकालो एक एरिया में कि कौन सी सवेरे का सम मैक्सिमम है एंड वो सम क्या है, तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू गिव मी एन बिग ऑफ एन सॉल्यूशन, दैट इज ओके, बट यू शुड बी एबल टू कम अप विद अ ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन एटलीस्ट, कि हाँ सारी सवेरे चेक कर लेते हैं उससे तो आंसर निकल ही आएगा। दैट शुड बी योर आइडियोलॉजी एट द मोमेंट, कि ब्रूट फोर्स बना सकते हो तुम एक करेक्ट सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में सोचे बिना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो डीपी इंप्रूव करवा देगी अपना, बट तुम्हें ब्रूट फोर्स का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। बैक ट्रैकिंग का आइडिया होना चाहिए कि हाँ ठीक है, रिकर्सिव कोड लिख रहे हैं, कहाँ पे डेड एंड आ गया, क्या क्या वेरिएबल्स पास करके हम बहुत सारे सॉल्यूशंस को बना के देख सकते हैं और उनमें से बेस्ट सॉल्यूशन को चूज कर सकते हैं। दैट्स इट, दीज आर द प्रीरिक्विजिट्स फॉर द सेशन आई वुड से। तो जस्ट टेकिंग अ फ्यू डाउट्स एट द मोमेंट, कुछ भी अगर सेशन रिलेटेड पूछना हो या कुछ रिक्वेस्ट हो कि ये भी कवर करो, राइट। सो ओके Sakib, it's my first class of dynamic programming. ठीक है ब्रो, आई विल ट्राई कि तुम्हें अच्छे से समझ आ जाए इसी क्लास में। एंड और कोई कुछ पूछना चाहता है यहाँ पे? फाइन, अभी तो मुझे इतने ही दिख रहे हैं, बट जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे आई विल कीप टेकिंग देम। ओके, तो निखिल से क्लासिक डीपी पे कोर्स। निखिल, मेरे चैनल पे काफी सारी प्लेलिस्ट्स हैं जिसमें मतलब बेसिक्स भी कवर कर रहे हैं, एंड यूजुअली मैं थोड़ी सी नॉन ट्रिवियल प्रॉब्लम्स कवर करता हूँ, कि क्योंकि ट्रिवियल प्रॉब्लम्स तो सबने पढ़ी होती हैं, तो यू कैन चेक दैट आउट, बट हाँ आई थिंक आई कैन प्लान समथिंग लाइक दैट। ओके फाइन, तो अब शुरू करते हैं, कब तक गप्पे मारेंगे, ठीक है। तो प्रीरिक्विजिट्स तक मैंने बता दिया कि प्रीरिक्विजिट्स क्या चाहिए। अब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में सबसे पहले तो शुरू करना है डीपी होता क्या है। एंड गाइस यू कैन लुक की ओवरव्यू ये है, हम ये सब कवर करने वाले हैं ताकि तुम्हें एक आइडिया लग जाए कि तुम कहाँ तक क्या क्या कवर कर पाओगे। डीपी क्या है बता दूंगा, कहाँ यूज कर सकते हो, पॉपुलर क्यों है इतनी, एंड इनफैक्ट लोगों को इतनी पसंद क्यों आती है वो बता दूंगा। 2-3 प्रॉब्लम्स करवा दूंगा, लास्ट 2 प्रॉब्लम्स ऑप्शनल है डिपेंडिंग अपॉन द टाइम एंड which problems people are more interested in. Last 2 problems को हम ऑप्शनल रखेंगे, कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, we'll see depending upon the interest। बाकी सारा हम यहाँ तक तो कंफर्म करेंगे, एंड में तुम्हें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, रिसोर्सेज ये सब शेयर कर दूंगा। ओके, तो सबसे पहले तो व्हाट इज डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो व्हेन इट कम्स टू डायनामिक प्रोग्रामिंग, it is simply a technique using which you can optimize your brute force solutions. You can think of it like that. Majorly
In dynamic programming, you take a problem and you try to solve that problem by breaking that problem into smaller sub-problems. So let me show you. Correct. तो एक प्रॉब्लम लेते हैं हम. This problem is not very easy to solve. इसको हम smaller सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन कर देते हैं. S1, S2, so on till S3. इस तरीके से एक बड़ी प्रॉब्लम को लेके छोटी प्रॉब्लम्स में ब्रेक डाउन किया. आइडिया तो डिवाइड एंड कॉन्कर का ही है, राइट? कि बिग प्रॉब्लम को डिवाइड कर दिया ताकि छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए. अब डीपी में क्या होता है कि डिवाइड एंड कॉन्कर का आइडिया लेके चलते हैं एंड इसमें ना सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो जाती हैं. हो सकता है हम S1 को सॉल्व करने के लिए, P को सॉल्व करने के लिए हम S1, S2 और S3 को सॉल्व करेंगे और S1, S2 और S3 का सॉल्यूशन मिलाकर P का सॉल्यूशन बनाएंगे समहाउ. कैसे प्रॉब्लम्स के थ्रू आइडिया लगेगा, बट हाँ P को सॉल्व करने के लिए स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की ट्राई करेंगे. S1 को सॉल्व करने के लिए हो सकता है S1 भी बहुत मुश्किल लगे, तो इफ S1 इज आल्सो वेरी हार्ड अकॉर्डिंग टू अस, हम S1 को दोबारा तोड़ देंगे even smaller sub problems. Let's say sub problem 1, sub problem 2, so on. अब मे बी S1 और S2 डायरेक्टली सॉल्व हो सकती हो, मे बी नहीं हो सकती हो, तो हमको फर्दर ब्रेक कर सकते हैं हम टिल द प्रॉब्लम बिकम्स सो इजी, सो ट्रिवियल कि उसको हम डायरेक्टली उसका आंसर बता पाए. फॉर एग्जांपल फर्स्ट फिबोनाची नंबर क्या है? इट इज रियली ट्रिवियल, सबको पता है क्या होता है, सीधा बता देंगे, दैट्स इट. तो बट अगर मैं पूछता 100 फर्स्ट फिबोनाची नंबर क्या होता है, नहीं बता पाते मे बी, राइट? तो S2 को जब सॉल्व करना ना, डीपी में डिवाइड एंड कॉन्कर में ये जो सब प्रॉब्लम्स या सब प्रॉब्लम्स हैं ये ओवरलैप नहीं करती, दीज आर डिसजॉइंट. बट डीपी में क्या होता है, हो सकता है S2 भी सेम सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करती है, हो सकता है सब प्रॉब्लम 2 आल्सो डिपेंड्स ऑन सब प्रॉब्लम 2. इन दिस केस इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग फाइंडिंग आउट द आंसर फॉर सब प्रॉब्लम 2 वंस अगेन, मैं यहाँ पे सॉल्यूशन को स्टोर कर देता हूँ और वापस रिटर्न कर देता हूँ. इससे मेरी बहुत सारी कंप्यूटेशन बच जाती है. दैट इज द आइडिया ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग. मेजरली एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जो कि एग्जॉस्टिव सर्च करता है. A brute force solution that tries out all the possibilities and among those possibilities chooses the best possible answer. Dynamic programming is exactly that same thing, just optimized. Brute force में हम ढूंढते हैं कि हम कौन कौन सी computations को बार बार कर रहे हैं और उन computations को बार बार नहीं करते, और वही brute force जो पहले let's say 2 power n या n factorial था, that becomes big O of n or n squared. So that's a major improvement. And आइडिया तब भी वही रहता है, ट्राई आउट ऑल द पॉसिबिलिटीज, चूज द बेस्ट अमंग ऑल द पॉसिबिलिटीज. जो ब्रूट फोर्स था डीपी में भी वही रहेगा, बस फर्क इतना आएगा कि डीपी में तुम सॉल्यूशंस को किसी तरीके से स्मार्टली स्टोर करोगे कि तुम कंप्यूटेशंस अपनी मिनिमाइज कर दो. सो दैट इज द बेसिक आइडिया. डिवाइड एंड कॉन्कर पे कैशिंग लगा दो साथ में कि सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन स्टोर करूंगा एंड रिपीटेड कैलकुलेशंस नहीं करूंगा, तो दैट वुड बी अ डायनामिक प्रोग्राम. तो ये एक बहुत ही बेसिक आइडिया लग गया. डिवाइड एंड कॉन्कर में अगर ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आंसर स्टोर कर दो, ये तुम्हारा हो जाएगा डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक बेसिक आइडिया. फाइन, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछो, एल्स विल मूव फॉरवर्ड. ओके, निखिल इज इन फर्स्ट ईयर एंड दैट्स रियली गुड. स्टार्टिंग से जितना करोगे उतना अच्छा है. मैं तो कहूंगा कि अभी से स्टार्ट कर दो, तुम्हारा 4th ईयर तक तुम बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे इस सब में, तो इट्स गुड, बहुत सही कर रहे हो. और किसी और को कोई डाउट्स हैं तो वो डाल सकते हैं. ओके फाइन. तो टाइप्स ऑफ डायनामिक प्रोग्रामिंग में, डायनामिक प्रोग्रामिंग के सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट करने के 2 तरीके होते हैं, बॉटम अप, टॉप डाउन. यूजुअली ज्यादा लोगों को नेचुरल लगता है टॉप डाउन सॉल्यूशन. टॉप डाउन का मतलब होता है कि तुम प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम, जो एक्चुअल प्रॉब्लम जिसको सॉल्व करना चाहते हो उससे शुरू करते हो एंड फिर सब प्रॉब्लम्स में उसको ब्रेक करते जाते हो, तो तुम ऊपर से, सबसे ऊपरी प्रॉब्लम से नीचे की तरफ जाते हो. That is the idea why it's called top down. में usually recursive code होता है and it's more natural to people कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी उसी से शुरू करके नीचे गए छोटी प्रॉब्लम्स तक, जब तक प्रॉब्लम बहुत इजी नहीं होगी सॉल्व करना. और बॉटम अप में क्या होता है, हम छोटी सब प्रॉब्लम्स को शुरू करते हैं जिनका आंसर ऑलरेडी पता है, उनको जोड़ते जाते हैं, मिलाते जाते हैं, so that we reach up to problem P, और इनके सॉल्यूशंस को मिला मिला के ऊपर जाते हैं और प्रॉब्लम P का सॉल्यूशन बताते हैं. दिस इज बॉटम अप. क्या फर्क है इनमें आगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट टॉप डाउन और बॉटम अप 2 आइडियाज होते हैं. प्रॉब्लम से शुरू करना या प्रॉब्लम तक पहुंचना, दैट इज द मेन डिफरेंस.
अब टाइप्स ऑफ डीपी में तुम्हें बहुत सारे फ्लेवर्स मिलेंगे, डीपी विद बिट मास्किंग, एसओएस डीपी, डीपी ऑन ग्राफ्स, डीपी ऑन ट्रीज और डिजिट डीपी, मतलब इतनी सारी चीजें मिलेंगी जब तुम टाइप्स में जाओगे। बट अगर तुम्हें बेसिक्स फंडामेंटल समझ आ गए तो ये सब डरने की चीजें नहीं है, सबका आइडिया सेम ही है। प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में ब्रेक करो, सोल्यूशन स्टोर करो, कैरी ऑन। विनय इज आस्किंग रियल एप्लीकेशन ऑफ डीपी। तो विनय रियल एप्लीकेशन ऑफ डीपी ना, जब तुम एक्चुअल में लाइब्रेरीज इंप्लीमेंट करते हो जहाँ पे ऑप्टिमाइज चीजें होनी चाहिए, तो ये सब बहुत काम आती हैं। मे बी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की उतना ज्यादा यूजफुल ना हो, बट फॉर समवन हु इज राइटिंग लाइब्रेरीज, जो कि एट द एंड ऑफ द डे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ही यूज करेंगे, डायनामिक प्रोग्रामिंग वुड टर्न आउट टू बी रियली यूजफुल। अब मैं एक बहुत सिंपल सी चीज बताता हूँ। गूगल पे तुम कुछ सर्च करते हो, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एप्पल के की स्पेलिंग अगर तुम गलत भी लिख दो, ये भी लिख दोगे, तब भी एप्पल आ जाता है, राइट? बिकॉज इसका एडिट डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बहुत सारी आप चीजें कर सकते हैं इसके साथ, एंड दिस ऑल इज इंटरनली इंप्लीमेंटेड, राइट? अगर मैं एक अपने कॉन्टैक्ट्स में भी किसी का नाम सर्च कर रहा हूँ, लेट्स से कार्तिक ही सर्च कर रहा हूँ चलो, और मैंने कार्तिक की जगह KURTI के लिख दिया, तब भी मेरा मोबाइल यूजुअली ढूंढ देगा कार्तिक। वो सिंपली क्या करेगा, हर स्ट्रिंग से देखेगा कि मिनिमम एडिट डिस्टेंस पे कौन सी स्ट्रिंग है, तो इससे वन एडिट डिस्टेंस पे कार्तिक है, राइट? अब ये सब ऑप्टिमली करना, अगर हम एक एक करके एडिट डिस्टेंस को ब्रूट फोर्स मैनर में निकालेंगे, दैट वुड बी हाईली एक्सपेंसिव, तुम्हारा मोबाइल स्लो हो जाएगा, तुम्हें मजा नहीं आएगा यूज करने में। बट डायनामिक प्रोग्रामिंग के थ्रू ऑल दिस इज रियली एफिशिएंट। तो दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशंस, बट द थिंग इज दैट जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स यूजुअली लाइब्रेरीज यूज करते हैं व्हिच आर कॉल्ड वेरी एफिशिएंट, उन पे इंटरनली ये सब एल्गोरिथम्स चल रहे होते हैं। और अगर तुम इस टाइप की लाइब्रेरीज बनाओगे या ऐसा रिसर्च का कुछ काम करोगे, लेट्स से मशीन लर्निंग कर रहे हो एंड कुछ ऑप्टिमाइज करना है, कोई फॉर्मूला कुछ कैलकुलेट करना है, तो ऑल दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। बिकॉज अगर तुम n फैक्टोरियल एल्गोरिथम लिख रहे हो और n 100 है, तुम किसी रिसर्च पेपर पे काम कर रहे हो, तो तुम वो तो कभी तुम्हारे कंप्यूटर पर रन ही नहीं होने वाला, तुम कितना महंगे से महंगा कंप्यूटर ले लो। बट लेट्स से उसका डीपी सोल्यूशन है big O of n squared, तो that would run within 1 second. So all this, you should be aware of all what all can be done. You may not implement them at a real job because people have already implemented them. But you should be aware, because if someday you actually try to do all that, then you will be able to use your knowledge of all these algorithms. So these algorithms are important. The knowledge, knowing what all can be done. Okay? So I guess that might answer your question a bit. So Palak is asking, is there any advantage of using bottom up over top down? Not really. See, as far as you are concerned with interview problems, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. Top down, bottom up, usually asymptotic complexity दोनों की सेम रहेगी. But होता क्या है कि bottom up usually कम लाइन में लिखा जाता है कोड, and उसके अलावा उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एनालाइज करना इजी होता है। एंड लेट्स से कि तुम बहुत हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेट्स से कोड फोर्सेस की 2000 प्लस प्रॉब्लम्स हैं, एंड कोई डीपी सॉल्यूशन है जिसमें हमें सेगमेंटरी साथ में यूज करना पड़ रहा है टू ऑप्टिमाइज आवर सॉल्यूशन। उन सारी चीजों में ना बॉटम अप में मैनिपुलेशंस करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है कंपेयर टू टॉप डाउन। अगर मैं डीपी के साथ में एक सेगमेंट ट्री यूज करके अपना सॉल्यूशन को ऑप्टिमाइज कर रहा हूँ, तो बॉटम अप वुड बी मच बेटर फॉर मी। But talking about interview problems or talking about, let's say, no usual problems, top down is equally good as bottom up. However, bottom up does execute faster. That's not usually it will execute faster. Should you are you forced to do bottom up? No, that's not the case. Choose whichever you are more comfortable with, and I have seen that people are usually more comfortable with top down. It's more natural to people. Fine. Sir, iterative approach requires a lot of thinking on DP problem, but top-down is quite thinkable. See, Nikhil, recurrence अगर बना दी तो top down और bottom up दोनों सेम है। अगर मैंने एक बार recurrence बना दी ना कि हाँ f of n is f of n-1 plus f of n-2, तो इसके बाद top down और bottom up दोनों सेम है। top down easily इसलिए लगता है क्योंकि यार ऊपर से नीचे जाते हो। बॉटम अप में प्रॉब्लम क्या होगी ना, तुम्हें इनको ऑर्डर सही से करना पड़ता है कि किस सब प्रॉब्लम को शुरू करके जोड़ के एफएन बनाओ। इसके लिए सिंपल एक चीज होता है, डीएजी बनाओ, डीएजी का टोपोलॉजिकल सॉर्ट करो, टोपोलॉजिकल सॉर्ट के अकॉर्डिंग फिर उसको ऊपर तक बिल्ड करो प्रॉब्लम तक। इसीलिए थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। जहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है टोपोलॉजिकल सॉर्ट, वहां पे तो इजी होता है। फॉर एग्जांपल फिबोनाची के केस में
ये बहुत इजी हो जाएगा। बट अभी के लिए बिगनर्स के लिए आई वुड से जो कंफर्टेबल लगे वो करो, जबरदस्ती अपने आप को फोर्स मत करो यार कि हाँ मैंने कोडर्स को देखा है जो बॉटम अप ही लिखते हैं, प्लीज ये सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना रिकरेंस बनाने पे मेन फोकस होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम की रिकरेंस बना पा रहे हैं, जिससे अभी मैं उस टॉपिक पे भी आऊंगा कि व्हाट इज रिकरेंस। उससे पहले अब थोड़ा फन करते हैं सेशन को, एक अच्छी सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ज्यादा ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान देने नहीं आया मैं, कुछ अच्छा करा देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉब्लम सिंपल है, तुम्हारे पास एक एरे है, इस एरे में n एलिमेंट्स हैं। What you want to do is you want to select a subset of these elements. Yeah, you can select as many elements from this array as you want. तुम्हारा ओवरऑल जो सेलेक्टेड एलिमेंट्स का सम होना चाहिए, दैट शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, but you should not select any two adjacent elements. Take a few minutes and think over it. So given array A with n elements, select as many elements as you want, select as many elements from this array, and the sum of these elements should be maximized, but don't select adjacent elements. तो सबसे पहले तो बताओ प्रॉब्लम स्टेटमेंट किसी को क्लियर नहीं है तो वो बता दो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है तो फिर सोचना शुरू करो। एग्जांपल दे देता हूं एक, और विनय इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ी देर में करते हैं, अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं, एक बेस बिल्डअप करते हैं पहले। ये वाले क्वेश्चंस मैं एंड में लूंगा डेफिनेटली। ग्रेट, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गई है सबको? कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हो, एंड कुछ सोल्यूशन दिमाग में आ रहा है तो वो भी बताओ। फाइन, एक एग्जांपल दे देता हूं। एग्जांपल ये है कि लेट्स से तुम्हारे पास एलिमेंट्स हैं 2, 10 एंड मे बी 8 एंड लेट्स से अगेन 3। तो व्हाट इज द आंसर फॉर दिस एरे? इस एरे के लिए तुम्हारा आंसर होगा 13। टेल मी व्हाई? बिकॉज मैं 10 सेलेक्ट करूंगा और मैं 3 सेलेक्ट करूंगा, इन दिस वे आई विल गेट 13। 8 और 2 मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता बिकॉज 10 के एडजेसेंट है और 3 के भी एडजेसेंट है, तो 8 और 2 तो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट ही नहीं कर सकते। 18 क्यों नहीं हो सकता इसका आंसर? बिकॉज 10 और 8 एडजेसेंट है, तो यू कैन नॉट सेलेक्ट देम, राइट? तो इसका आंसर 13 हो सकता है एंड वही है। तो ठीक है, आई गेस प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। और इसका कुछ सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो, ग्रीडी, ब्रूट फोर्स, व्हाटएवर कम्स टू योर माइंड, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे। Let me give you another example, 5, 6, 2, 1 and maybe 8. इस केस में क्या आंसर हो सकता है? इस केस में I can probably select 6 and then maybe I can select 8. This would give me 14. But is it good? It's not good. Because instead of this, I could have selected 5, 2 and then 8. That would give me 15, which is better. So I would not select this one, but rather I would select 5, 2 and 8. So answer comes out to be 15, which is probably the right answer. Try कर सकते हो। Okay, पार्थ को तो ऑलरेडी आता है शायद, बट कोई नहीं, हम ब्रूट फोर्स से ही शुरू करेंगे। फाइन, तो यार अगर तुम्हें ब्रूट फोर्स सोच सकते हो ना इसका, तो इसका सिंपल ब्रूट फोर्स ये है, क्वेश्चन को रीड करो और जो क्वेश्चन कह रहा है वो कर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिलेक्ट एज मेनी एलिमेंट्स एज यू वांट, बेसिकली सिलेक्ट अ सबसेट ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द एरे एंड देन उनका सम निकालो, और जिस भी सबसेट के लिए मैक्सिमम पॉसिबल सम आ रहा है, और सबसेट में कोई भी दो एडजेसेंट एलिमेंट को मत सिलेक्ट करो, जिस भी सबसेट के लिए मैक्सिमम आ रहा है वो तुम्हारा, उस सबसेट का सम तुम्हारा आंसर है। तो ट्राइंग आउट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एन एरे, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर डूइंग दैट? ठीक है, एक रोहन का अप्रोच पहले हम साथ में ट्राई कर लेते हैं। रोहन ने कुछ लिखा है कि पहले तो एरे को सॉर्ट करके सर, फिर हम लास्ट मींस मैक्सिमम एलिमेंट को लेके उसके n-2 बैक जाके, मतलब 3 लास्ट एलिमेंट के साथ सम करेंगे। ठीक है, तो रोहन कह रहा है कि हम एरे को सॉर्ट कर देते हैं, तो सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ जाएगा और उसको तो हम डेफिनेटली लेंगे। रोहन, इज दैट राइट व्हाट यू आर सेइंग? तो लेट्स से अगर तुम्हें एरे ले रहे हो, एग्जांपल 5, 2
maybe 9 and 6. देखो अगर तुम मैक्सिमम एलिमेंट वाला आइडिया लेके चलते हो ना, पहले तो सॉर्ट नहीं कर सकते, सॉर्ट करने में प्रॉब्लम क्या आएगी, तुम एडजेसेंट के बारे में भूल जाओगे कि इसके एडजेसेंट कौन था, और सबसे बड़ा एलिमेंट लेने में क्या प्रॉब्लम आएगी, मैं तुम्हें वो भी एक एग्जांपल दे देता हूँ। इस केस को देखो, 18996, अगर इसमें मैं 9 ले लेता हूँ जो कि लार्जेस्ट एलिमेंट है, तुम्हारा आइडिया है कि लार्जेस्ट एलिमेंट के बारे में कुछ करना पड़ेगा, तो अगर तुमने इसमें 9 ले लिया ना, तो तुम साथ में 1 ही ले पाओगे, तो आंसर 10 बनेगा। तो लार्जेस्ट को अगर मैं अवॉइड कर दूं तो मेरा आंसर 14 बन रहा है इनफैक्ट। तो सोल्यूशन अगर तुम लार्जेस्ट के बारे में सोच के चल रहे हो तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, तुम्हें आइडिया लग गया क्यों, राइट रोहन। तो और किसी के पास कोई ग्रीडी अप्रोच है जो इस पे फेंक के देखना चाहता है ब्रूट फोर्स से पहले? जितना तो सोच ही सकते हो कि क्वेश्चन ऐसा लाऊंगा जो तुम ब्रूट फोर्स ग्रीडी पे नहीं कर पाओगे बट फिर भी एक बार अगर ट्राई करना है तो दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ठीक है ग्रीडी सोल्यूशन नहीं बन रहा है इसका, वो क्लैरिटी आएगी तभी तो डीपी का तुम्हें फायदा दिखेगा। स्लाइडिंग विंडो मतलब क्या स्लाइडिंग करोगे, तुम्हें तो इसमें एलिमेंट सेलेक्ट करना है, स्लाइडिंग विंडो में तो विंडो के अंदर का सब सेलेक्टेड होता है ना, राइट। तो स्लाइडिंग विंडो में क्या करोगे, ठीक है। और कोई ग्रीडी सोल्यूशन की, हाँ लार्जेस्ट को नहीं, हमें स्मॉलेस्ट को लेके देख लेते हैं, स्मॉलेस्ट को स्किप करके देख लेते हैं, कुछ भी अपना पेन पेपर पे ट्राई करो, नहीं हो पाएगा, कुछ ना कुछ काउंटर एग्जांपल बनेगा। बर्थ सेज ऑल इवन इंडेक्स एंड ऑड इंडेक्स, ठीक है, हाँ, पर दिस इज एक्चुअली नॉट बैड कि सम मैक्सिमाइज कर रहे हैं, मैं सारे ऑड भी मेरे पास अवेलेबल हैं, सारे इवन भी मेरे पास अवेलेबल हैं, दिस विल एक्चुअली गिव यू अ गुड आंसर बट नॉट द ऑप्टिमल वन। This will be very close to the maximum possible, but not the maximum possible in all the cases. But right, good try I would say कि हाँ या तो सारे ऑड सारे इवन उनमें से कोई एक उठा लूंगा जो भी ज्यादा होगा, राइट। तुम्हारा अप्रोच मुझे जो समझ आ रहा है, which is not bad, definitely not bad at all। ये दिमाग में आना is a good sign कि तुम सोच ट्राई कर रहे हो। Even or odd array लेकर calculate and compare, right, that would not work, Srinivas। So see, I'll tell you why. Let's say 5 1 and let me say 5 1 and 0, okay, and 9, right। इस केस में you are either going to take 5 plus 0 or you are going to take 9 plus 1, right। 10 ले लोगे तुम, obviously 10 ले लोगे because 9 plus 1 is greater than 5, but if I skip both of these and take 5 and 9, my answer turns out to be 14 and your algorithm is going to miss that। So this greedy one will not work कि सारे odd या even में से जो better है वो select कर लो, so that will not work। वंशी अभी रिकरेंस पे मैं नहीं आ रहा, रिकरेंस पे अभी मैं बाद में आऊंगा, अभी क्योंकि जो इन लोगों को डीपी नहीं आती उनको एक डायरेक्शन पे लेके जाना है, तो 2 मिनट रुक जाओ, रिकरेंस पे भी आते हैं। अब मुझे ब्रूट फोर्स चाहिए कि ब्रूट फोर्स सोच पा रहे हो यार कि ब्रूट फोर्स कैसे करोगे, तो ब्रूट फोर्स कैसे करोगे इसके लिए यार कि अब मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कोई मतलब नहीं है, n फैक्टोरियल में कर दो, n स्क्वायर में कर दो, क्यूब में कर दो, बट मुझे सोल्यूशन करेक्ट चाहिए कि अगर इसका आंसर 14 है तो 14 ही आना चाहिए। टाइम जितना भी लो, स्पेस जितनी भी लो, तुम्हारी मर्जी, नो बाउंड्स ऑन दैट, बट गिव मी द करेक्ट सोल्यूशन। इसके लिए कोई बता सकता है कि हाँ बैक ट्रैकिंग रिकर्जन एक करेक्ट सोल्यूशन कैसे मिलेगा? 2 मिनट लो, मैं भी पानी पी लेता हूँ तब तक। ओके, सो वेंकट यू आर राइट, सारे सबसेट अगर बना लेंगे और उसमें से सारे सबसेट बनाए पहले, उसके बाद एक और चीज करनी पड़ेगी। एक बार सारे सबसेट बना दिए ना, लेट्स से दिस इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स कैपिटल एस, अब इसमें एक सबसेट है स्मॉल एस, इसको पहले चेक करना पड़ेगा इज इट वैलिड। वैलिड का मतलब है कि इसमें कोई 2 एडजेसेंट एलिमेंट तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो इसको काटना पड़ेगा, राइट। तो वो बैक ट्रैकिंग से पहले ही हटा दो, ऐसे सबसेट बनाओ ही मत, ठीक है।
तो अब इन सबसेट्स में से जो वैलिड सबसेट्स हैं इनमें से जिसका सम एज लार्ज एज पॉसिबल है वो आंसर है, और इसमें तो इनकरेक्टनेस का कोई चांस ही नहीं, क्योंकि हम सब कुछ तो ट्राई कर रहे हैं, तो गलत तो हो ही नहीं सकता, राइट? जो आंसर है, जो एक्चुअल आंसर है, जो सबसेट एक्चुअल आंसर है, वो भी तो सिलेक्ट हो रहा होगा एक बार। सिंस वी आर ट्राइंग आउट ईच एंड एवरी पॉसिबल थिंग हियर, तो ये गलत होने का कोई चांस नहीं है, राइट? सबको समझ आ गया? सर्वेश, डज इट कंटेन नेगेटिव नंबर्स? ठीक है, अगर मैं बोल दूं नहीं करते तो तुम कुछ स्मार्ट सा ग्रीडी एल्गोरिथम बताओगे, फिर मुझे उसको डिस्प्रूव करना पड़ेगा। तो लेट अस से डज कंटेन नेगेटिव नंबर्स, बट जहां तक मुझे पता है अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं भी होंगे तो भी ग्रीडी सोल्यूशन नहीं बना पाओगे। अगर बनता है तो बताओ, मैं कुछ बताता हूँ तुम्हें काउंटर, राइट? मुझे अब बताओ ब्रूट फोर्स किस किस को समझ आ गया? जस्ट ट्राई आउट ऑल द सबसेट्स, दैट्स इट। ट्राई आउट ऑल द वैलिड सबसेट्स जिसमें कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट्स नहीं आ रहे, एंड जो भी मैक्सिमम सम है वो तुम्हारा आंसर है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ जल्दी से कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है सारे सबसेट्स ट्राई आउट करके आंसर निकालने की। पलक, सबसेट और सबसीक्वेंस डजंट मैटर आई गेस, बिकॉज हाँ डजंट मैटर, क्योंकि देखो तुम्हें तो एलिमेंट से मतलब है, तो 2 5 6 9 इसमें सबसीक्वेंस होंगे, 2 6 और 9 इज अ सबसीक्वेंस, सबसेट इज 2 6 9, तो डजंट मैटर, राइट? सबसेट और सबसीक्वेंस, आई डोंट थिंक मेक्स अ डिफरेंस इन दिस केस। सबसीक्वेंस में बेसिकली ऑर्डरिंग डिफाइन हो जाती है कि लेफ्ट टू राइट ही देख रहे हैं एलिमेंट्स, सबसेट में ऐसी कोई ऑर्डरिंग नहीं होती, बट क्योंकि मुझे सम से ही मतलब है तो सबसेट और सबसीक्वेंस में कोई फर्क नहीं आएगा मेरे लिए, राइट? तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सबको पता है कि 2 पावर n है। रोनित से इसकी चेक में सॉल्यूशन, सर रोनित ने सॉल्यूशन कहाँ भेजा है? ओके, रोनित का सॉल्यूशन है मैक्स ऑफ ai प्लस मैक्स सम ऑफ रिमेनिंग स्किपिंग द नेक्स्ट इंडेक्स। रोनित, इट इज राइट, बट लेट्स ट्राई टू बिल्ड इट अप। आई थिंक इट इज राइट जितना मैंने रीड किया। ठीक है, 2 पावर n सबको समझ आ गया, परफेक्ट। हाँ, इनफैक्ट n into 2 पावर n भी हो सकता है जो पार्थ लिख रहा है, मैं अब इवैल्यूएट करने के मूड में नहीं हूँ, बट आई थिंक स्मार्टली करोगे तो 2 पावर n में इंप्लीमेंट हो जाएगा। स्टिल नॉट गुड, बिकॉज n तो मैं 10 पावर 6 सोच रहा था, तो पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, अब इसको ट्राई करना है सॉल्व करने की। देखो सबसेट का आइडिया कहां से आया? जो मेरा फाइनल आंसर होगा, लेट्स से फाइनल आंसर इज सम ai1 सम ai2 एंड सो ऑन टिल सम aik। मैं के एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं रैंडमली इनमें से, और लेट्स से ये मेरा फाइनल आंसर था। तो अगर ये तुम्हारा फाइनल आंसर है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि फाइनल आंसर एक सबसेट ऑफ एलिमेंट्स है, उनका सम इज द फाइनल आंसर। तो इसका मतलब क्या है? A1 आंसर में है या नहीं? कितनी पॉसिबिलिटीज हैं A1 के लिए फाइनल आंसर में अपीयर होने की? क्या पॉसिबिलिटीज हैं? राइट, कोई बता सकता है कि A1 के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं कि वो फाइनल आंसर में? फाइनल आंसर के बारे में सोचकर A1 के बारे में 2 पॉसिबिलिटीज बताओ जो हैं। या तो वो फाइनल आंसर में होगा या तो वो नहीं होगा। A1 के लिए इज देयर एनीथिंग एल्स पॉसिबल? See, A1 के लिए there are just 2 possibilities. Either it is going to be in the final answer or it is not going to be in the final answer. There's nothing else about A1 that can be done, right? 2 possibilities. Fine. Now we're trying to build up a solution. We're trying to find out कि हाँ यार, अगर हम ये करते हैं सारा प्रोसेस, तो what is the maximum sum that you can get from this entire array from A1 till AN? This is what we are trying at the moment. अब A1 के बारे में सोचा जा रहा है। A1 के बारे में मैं सोच रहा हूँ यार, ये तो या तो फाइनल आंसर में होगा या नहीं होगा, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मैं दोनों पॉसिबिलिटीज कंसिडर करके देख लेता हूँ ना। मान लो कि मैंने A1 लिया, मान लेते हैं, तो मेरा फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी एटलीस्ट A1 प्लस समथिंग, या फिर मैं A1 नहीं लूंगा, और तो कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। डू नॉट टेक A1, देयर जस्ट 2 पॉसिबिलिटीज, राइट? एंड आई एम ट्राइंग बोथ, तो मेरा सोल्यूशन गलत नहीं हो सकता बिकॉज आई एम ट्राइंग आउट एवरीथिंग। सो डू नॉट टेक A1। अच्छा, अगर मैंने A1 लिया तो बता सकते हो कि मैं अब क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ? प्रॉब्लम मैं ये बता देता हूँ। लेट मी डिफाइन माय प्रॉब्लम एज सम ऑफ all elements that I select from A1 till AN। मेरी इनिशियल प्रॉब्लम ये है कि what is the maximum sum that can be achieved using the elements of the array A1 till AN such that I do not select any 2 adjacent elements।
ओके, तो कोई बता सकता है अगर मैं A1 सेलेक्ट करता हूं तो कोई सब प्रॉब्लम बता सकता है क्या बनेगी सिमिलर ऑन दिस लाइंस? कि अभी मैं ढूंढ रहा था व्हाट इज द मैक्सिमम सम दैट आई कैन गेट यूजिंग द एरे फ्रॉम A1 टिल AN, एंड अगर मैंने A1 सेलेक्ट कर लिया तो व्हाट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ सब प्रॉब्लम दैट आई वांट टू सॉल्व? मैं ये पूछ रहा हूं तुमसे, ट्राई टू थिंक ऑफ दैट. आई थिंक वंशी इज ऑन द राइट लाइन. गुड. अगर मैंने A1 ले लिया तो इसका मतलब A2 तो मैं ले नहीं सकता. A2 तो ऑलरेडी A1 का एडजेसेंट है, तो अब A2 तो मेरा सम में आना ही नहीं चाहिए अगर मैंने A1 लिया है. बट अब मैं सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं फ्रॉम फॉर ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम A3 टिल AN. सेम प्रॉब्लम, एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम फ्रॉम A3 टिल AN. कि what is the maximum sum that I can get using the elements from A3 till AN. तो पहले मैं n एलिमेंट्स के एरे पे सॉल्व कर रहा था, अब मैं सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं बट n-2 एलिमेंट्स के एरे पे. उसमें A1 ऐड कर दूंगा, मेरा पूरा आंसर बनेगा, राइट? तो अज्यूमिंग कि दैट आई टेक A1, now I am interested in finding out what is the best I can get using the array from A3 till AN. किसी को कोई डाउट इस चीज में? ओके, आई डोंट थिंक इसमें किसी को डाउट है. डाउट है तो कमेंट्स में डाल दो, आई विल एक्सप्लेन. फाइन. अब है नेक्स्ट चीज, अगर मैं A1 नहीं लेता, A1 नहीं लूंगा तो कूल, मेरी बड़ी एरे थी. सिंपली इसका मतलब क्या, मैंने तो A1 को डिस्कार्ड ही कर दिया ना. A2 को कोई फर्क नहीं पड़ता, A2 को मैं अभी भी ले सकता हूँ. तो अब मैं बस सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ फॉर ऑल द एलिमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम A2 टिल AN. सेम प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का नाम क्या था? व्हाट इज द सम दैट यू कैन गेट यूजिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे for the array A2 till AN, for the array A3 till AN, and the initial problem for the array A1 till AN. अब इसका आंसर मान लो x है, इसका आंसर मान लो y है. अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा? It is going to be either A1 plus x, that is I do select A1, or it's going to be y. There are just two possibilities, right? A1 होगा आंसर में या फिर A1 नहीं होगा आंसर में. तो हमने पूरी की पूरी सॉल्यूशन को दो चीजों में ब्रेक कर दिया बस, कि फाइनल आंसर में A1 है या नहीं. That is the entire idea. अब इसके थ्रू मैं तुम्हें डीपी स्टेट्स, रिकरेंस और डैग रिप्रेजेंटेशन बता दूंगा. कोई डाउट है इसमें किसी को तो प्लीज जल्दी बताओ, नहीं तो अब इसको हम निपटाते हैं इस वाले क्वेश्चन को. ठीक है, डाउट नहीं लग रहा तो लेट मी डिफाइन द थिंग प्रॉपर्ली. मैंने इनिशियली अपनी प्रॉब्लम बनाई डीपी ऑफ 1, ये मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम थी कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ एलिमेंट्स दैट आई कैन गेट if I select elements from the array starting at 1 ending at n. What is the maximum sum I can get if I select elements from the array starting at 1 ending at n and so that I do not select any adjacent element. ये थी ओरिजिनल प्रॉब्लम. गुड, ठीक है. अब ये तो हुआ कि 1 से n की एरे के बारे में बात कर रहा हूं मैं. अब मैंने कहा ठीक है, ये वाला आंसर, इसमें हम इस बड़ी एरे में दो ही चीजें कर सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया कि A1 या तो आंसर में आएगा या फिर आंसर में नहीं आएगा, और कुछ कर ही नहीं सकते. तो दो पॉसिबिलिटीज. पहली पॉसिबिलिटी कि मैंने A1 लिया, A1 लेने के बाद हमने देखा था कि A2 तो अब एनीवे नहीं आने वाला, और अब मैं वो चाहता हूं कि A3 से AN वाली एरे में व्हाट इज द लार्जेस्ट पॉसिबल सम आई कैन मेक, राइट? A3 से AN में मैं एलिमेंट सेलेक्ट करूं, कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट दोबारा आए, और मैक्सिमम पॉसिबल सम क्या बन सकता है? अब बाय डेफिनेशन दैट इज डीपी ऑफ 3, definition है dpij की, maximum sum that you can get by selecting elements from the subarray I to j so that no two adjacent elements are selected. तो by definition A3 से n का आंसर है dp of 3, ये तो हमारी डेफिनेशन की वजह से ही बन रहा है, ठीक है? तो ये गलत हो ही नहीं सकता. फाइनली अगर मैं A1 सेलेक्ट नहीं करूं तो ठीक है, A1 डिस्कार्ड कर दिया मैंने अपनी बड़ी एरे में से. अब मुझे सेम प्रॉब्लम सॉल्व करनी है फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, एंड बाय डेफिनेशन इस वाली एरे के लिए आंसर क्या है? डीपी ऑफ 2, सिंपल. तो दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों मैंने देख ली, दोनों के आंसर मेरे पास आ गए. तो अब डीपी ऑफ 1, क्या होगा? बिकॉज आई वांट टू मैक्सिमाइज माय सम, इन दोनों में से जो बड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा. बस प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सिंपल. अभी इसका कोड लिख के दिखाऊंगा तो तुम्हें समझ आएगा कि व्हाई इज दिस सो ब्यूटीफुल, और ये सॉल्व सच में कैसे हुई. कोई डाउट है तो जल्दी बताओ. I think no doubt.
Fine. Okay, so I don't think there is any doubt. Let me show you the code here. But before going to the code, tell me कि dp of n comma n कौन बताएगा कि if I'm talking about the subarray that starts at n and ends at n, इसका आंसर बता सकते कोई मुझे? अगर एक ही सिंगल एलिमेंट की एरे है तो उसके लिए आंसर क्या होगा? ओके, तो ऐसे देखो कि अगर मेरे पास ये एरे थी 5 6 7 थी मान लो, और मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि रिगार्डलेस ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स अगर सब एरे सिर्फ इतनी होती तो इसका आंसर क्या है? एनीवन? ओके, आई थिंक कि मैं बता देता हूँ इसका आंसर सिंपली ये लास्ट होगा एलिमेंट, बिकॉज अगर मेरे पास एक सिंगल एलिमेंट की एरे, हाँ राइट, इसका आंसर सिर्फ 7 होगा। एंड अगर n एलिमेंट्स की एरे होती तो उसका आंसर, अगर सिर्फ मैं एक ही एलिमेंट को देख रहा हूँ, मुझे बाकी एलिमेंट्स को मतलब ही नहीं है, तो एक सिंगल एलिमेंट को देखूंगा तो उसका आंसर an होगा, राइट? फाइन, तो अब लेट मी शो यू द कोड फॉर दिस थिंग। इसमें ना डिस्कस करो पहले कि मैंने कहा था मैं डीपी स्टेट्स के बारे में बात करूंगा, तो अगर एक प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के थ्रू तुम कैरेक्टराइज कर पा रहे हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम लेकर उसको कैरेक्टराइज कर पा रहे हो यूजिंग वेरिएबल्स, एंड उन वेरिएबल को चेंज करने से वो प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स वगैरह में चेंज हो रही है। जैसे अभी हमने वेरिएबल लिए थे, मेरी ओरिजिनल प्रॉब्लम यही थी जो मैंने यहाँ लिखी हुई है, गिवन एरे ए विद एन एलिमेंट्स। इसको मैंने एक बस स्टेटमेंट को इस तरीके से चेंज किया कि एरे ए की जगह मैंने बोला कि मैं फर्स्ट एलिमेंट से nth एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। इससे मेरी ना जो प्रॉब्लम थी वो इंग्लिश स्टेटमेंट में रही, बट उसके अंदर दो वेरिएबल आ गए, कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो एक प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के थ्रू कैरेक्टराइज करने से एक डीपी स्टेट बन जाती है, जिसको मैंने लिखा था कि ठीक है, मेरा डीपी ऑफ आई जे का मतलब है कि व्हाट इज द सेम प्रॉब्लम दिस वन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सबएरे फ्रॉम आई टिल जे। तो एक प्रॉब्लम को जो तुम वेरिएबल्स के यूज से कैरेक्टराइज कर देते हो उसको कहते हैं डीपी स्टेट। इसके बाद मैंने क्या किया था, मैंने एक डीपी स्टेट ली थी, उसको और डीपी स्टेट्स के रिलेशनशिप में लिखा था। मैंने लिखा था कि यार हाँ, डीपी ऑफ 1 कॉमा n मेरा बन रहा है a1 प्लस डीपी ऑफ 3 कॉमा n, या फिर मैक्स ऑफ दीज टू, या फिर डीपी ऑफ 2 कॉमा n। मैंने लिखा था ऐसा, राइट? एंड इन दोनों में से हम ये ले रहे थे। तो इनको अगर तुम देखोगे, मैंने एक इक्वेशन में इन डीपी स्टेट्स के बीच में मैंने एक रिलेशनशिप निकाला। इस रिलेशनशिप को कहते हैं रिकरेंस, ठीक है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन इट कम्स टू डीपी। एक तो डीपी स्टेट क्या होती है, प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के थ्रू कैरेक्टराइज करो, फिर वेरियस सब प्रॉब्लम्स को एक दूसरे के रिलेशनशिप में लिखो, उसको कहेंगे रिकरेंस। एंड फाइनली एक बेस केस ढूंढो, एक ऐसी डीपी स्टेट ढूंढो जो कि इतनी ट्रिवियल है, इतनी इजी है सॉल्व करना कि तुम उसका डायरेक्ट सॉल्यूशन बताओ। तो मैंने ढूंढा कि डीपी ऑफ n कॉमा n इज सिंपली an। दिस इज ट्रिवियल। इनफैक्ट डीपी ऑफ i कॉमा i इज सिंपली ai, बिकॉज़ एक एलिमेंट की एरे का आंसर वही होगा खुद से, मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा, वही आंसर हो गया। अब इसमें देखो, क्या मैं कम वेरिएबल्स का यूज करके अपनी डीपी स्टेट रिप्रेजेंट कर सकता हूँ? सोच के देखो। अभी मैं कर रहा हूँ डीपी आई जे का मतलब है कि मैं सब एरे आई से जे के बारे में बात कर रहा हूँ, बट क्या मुझे आई से जे से कोई मतलब है? जो मेरी रिकरेंस बन रही थी, मैं अगर अपनी इंग्लिश स्टेटमेंट में जे की जगह उसको कांस्टेंट ही रख दूं कि व्हाट इज द मैक्सिमम सम, अगर मैं बना दूं डी ऑफ आई, अगर मैं बनाऊं डीपी ऑफ आई एंड इसको मैं स्टेट कर दूं कि दिस इज इक्वल टू द मैक्सिमम सम दैट आई कैन गेट बाय सेलेक्टिंग एलिमेंट्स दैट स्टार्ट एट द वेरिएबल आई एंड एंड एट द लास्ट एलिमेंट। तो ये n तो कांस्टेंट है, एक i इज अ वेरिएबल जो कि डीपी स्टेट पे डिपेंड करेगा, एंड मेरा एक सिंगल वेरिएबल से डीपी स्टेट बनेगी, एंड दैट इज कैरेक्टराइजिंग अ प्रॉब्लम यूजिंग वन वेरिएबल नाउ। सो व्हाट इज द मैक्सिमम सम दैट आई कैन गेट, dpi ये होगा, such that I select elements from the subarray starting at I ending till at the last element of the array, and I do not select any adjacent elements। तो dp of I ये हो जाएगा। अब मेरा फाइनल आंसर क्या होगा बताओ? ओके,
इसमें फाइनल आंसर कौन बताएगा? इस वाली मेरी क्या कहते हैं डेफिनेशन के हिसाब से, डेफिनेशन इज dt of I maximum that you can get by selecting elements from array that starts at I ends at n. Maximum that you can get by selecting elements that start at I end at n, so that no two consecutive adjacent elements are selected. Right. फाइनल आंसर क्या होगा इस dpi के हिसाब से? मेरा फाइनल आंसर वुड बी dp of what? That is what I am trying to ask you. Parth says max of dp0, dp1. ठीक है, dp0 तो छोड़ दो, वन बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं ले रहा मैं अभी के लिए जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग नहीं ले रहा. अब बताओ, मेरी एरे a1 a2 a3 so on till an है, तो इट इज वन बेस्ड इंडेक्सिंग. वंशी says this, okay fine, dp of I equal to, वंशी तुमने तो रिकरेंस लिखी है, फाइनल आंसर क्या है? ओके, तो डेफिनेशन के हिसाब से देखो, मुझे क्या चाहिए था? What is the maximum sum that I can get by selecting elements from the array that starts at 1 and ends at n, so that no two adjacent elements are selected. तो अगर तुम इस डेफिनेशन में देखोगे तो सिंपली इस i को 1 से रिप्लेस कर दूंगा तो वही बन रही है बात. तो मेरा आंसर इज dp of 1, दैट्स ऑल. मेरा आंसर सिंपली dp of 1 है. फाइनल आंसर इज दिस. किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, बट फाइनल आंसर इज dp of 1, दैट्स इट. इस स्टेटमेंट में आई को 1 से रिप्लेस कर दो, जहां जहां पे आई आ रहा है उसको 1 करो और देखो क्या सच में वो है या नहीं. और dp of 1 को निकालने के लिए हमने जैसे बात किया था, दो पॉसिबिलिटीज, या तो a1 लोगे या नहीं लोगे. अगर नहीं लेते तो सिंपली सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो ai से a2 से an तक. अदरवाइज लेते हो तो a1 आ गया तुम्हारे पास आंसर में, प्लस सेम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो थर्ड से n तक. ठीक है ना? अब इसका एक बार कोड देखते हैं. This is known as the recurrence. This is known as the DP state. And yeah, that's it. अब इसको हम कोड में देखते हैं. तो कोड कैसा देखना चाहोगे? टॉप डाउन, बॉटम अप? अभी के लिए हम लिखेंगे टॉप डाउन. फाइन. तो मैं बोलूंगा कि मुझे निकालना है मैक्स सम गिवन द एरे ए, एंड कहां से कहां तक. सब एरे के लिए एक आई ले रहा हूं मैं. ठीक है, तो ये मेरी एरे ए है. इसके लिए आंसर निकालना चाहता हूँ. वन बेस्ड इंडेक्सिंग मान लेते हैं बी के लिए, थोड़ी लाइफ इजी हो जाएगी सबकी समझने में. और इंटीजर आई ले लिया. आई बता रहे कि कहां से कहां तक का सम चाहिए. आई बेसिकली डीपी ऑफ आई बता रहा है, राइट. फाइनल आंसर मैंने कहा कि मेरा आंसर है मैक्स सम एट 1 a, 1. a could possibly be 5 6 8 and maybe 4. It could be anything. And ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ. मैक्सिमम के अंदर आते हैं. मैक्सिमम पे मैं ith एलिमेंट पर. सबसे पहले मुझे बताओ, अगर बेस केस क्या था? अगर i इक्वल टू n है तो अगर एक ही एलिमेंट है मेरे सब एरे में, if i equals to n, that means a dot size. In that case, अच्छा, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ए डॉट साइज पे कुछ होता नहीं, कोई लास्ट एलिमेंट नहीं होता. तो लेट मी जस्ट मेक इट ए डॉट साइज -1. राइट. अगर मैं लास्ट एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, आई इक्वल टू लास्ट एलिमेंट है, तो सिंपली रिटर्न दैट एलिमेंट. दैट इज द आंसर जो हमने डिस्कस किया था. सिंगल एलिमेंट है, उसका आंसर वो खुद ही है. सिंगल एलिमेंट है रेगुलर. अदरवाइज दो पॉसिबिलिटीज डिस्कस करी थी. ऑप्शन नंबर 1 था हमारे पास कि a1 को सिलेक्ट करूं, बेसिकली ai को सिलेक्ट करूं. ai को सिलेक्ट किया, प्लस अब मैं सोचूं व्हाट इज द आंसर फॉर ai प्लस 1 को सिलेक्ट नहीं कर सकता, i प्लस 2 से n के लिए आंसर है. दैट इज बाय डेफिनेशन मैक्सिमम ऑफ a, i प्लस 2. एंड द अदर ऑप्शन वाज कि ai को सिलेक्ट नहीं करूं और मैक्सिमम निकाल लूं,
फ्रॉम i plus 1 till n. सिंपली a1 ai को डिस्कार्ड किया, i plus 1 से n के लिए बेस्ट आंसर निकाल दिया एंड फाइनल आंसर हो जाएगा इन दोनों में से जो भी बेस्ट है. That's it. ये हुआ सोल्यूशन. इसमें एक गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम आएगी और इनफैक्ट सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा. सोचो क्या गलती हो सकती है, बट उससे पहले अभी तो ये ऑप्टिमल नहीं है सोल्यूशन. रीजन बीइंग इसमें मैं बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली सॉल्व कर रहा हूँ. लेट मी शो यू हाउ. बॉटम अप रोनेत दूसरी प्रॉब्लम मैं करा दूंगा किसी. अभी एक प्रॉब्लम तो और कवर करेंगे ही हम. रॉड कटिंग करेंगे, उसमें बॉटम अप करा दूंगा. फाइन. तो इसमें देखो अभी हो क्या रहा है. मैं इनिशियली जब शुरू करता हूँ ना तो मैं यहाँ पर मैं डीपी ऑफ 1 निकाल रहा हूँ 1 से n तक की एरे के बारे में. यहाँ से डीपी ऑफ 1 एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन टू टाइप्स ऑफ एरेज, two type of DP states. If I select A1, then it depends upon DP of 3, right? DP of 3. So it depends upon state number 3. अगर मैं A1 को select नहीं करता हूँ तो 1 also depends upon state number 2. तो 1 के आंसर के लिए मुझे 3 और 2 का आंसर पता होना चाहिए, right? Exactly. अब 3 के आंसर के लिए देखो मुझे क्या चाहिए होगा. 3 के आंसर के लिए मुझे चाहिए होगा 4 और 5 का आंसर. और 2 के आंसर के लिए मुझे क्या चाहिए होगा. 2 के आंसर के लिए मुझे चाहिए होगा 3 और 4 का आंसर. तो अभी क्या कर रहे हैं हम, अभी सब प्रॉब्लम्स रिपीट हो रही है. 1 के आंसर के लिए 3 का कॉल करूंगा, 3 के लिए 4 और 5 का कॉल करूंगा. इनके आंसर निकालने के बाद 3 कैलकुलेट हो जाएगा, फिर 1 पे आएंगे. लेकिन अगर इसमें तुम देखो जब मैं 2 पे दोबारा आया तो मैं फिर से 3 के आंसर के लिए जाऊंगा, इसको फिर कैलकुलेट करूंगा नीचे तक. बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा और कंप्यूटेशंस वेस्ट होंगी. तो मैं इंस्टेड क्या करूंगा, मैं 3 का आंसर दोबारा कैलकुलेट नहीं करूंगा, बिकॉज मैंने तो यार यहाँ पे किया ही था ना. मैं उस आंसर को रीयूज कर लूंगा तो मुझे अब टाइम नहीं लगेगा. इनफैक्ट सिर्फ 3 का टाइम नहीं बचेगा, ये पूरे सब ट्री का टाइम बच जाएगा जो 3 के नीचे है. और 4 पे भी जाऊंगा ना जब, तो 4 भी दोबारा नहीं कैलकुलेट करना पड़ेगा, because 4 is also calculated over here. रीयूज कर लूंगा. तो अगर तुम सोच के देखो तो मुझे 2 के लिए ना कुछ भी टाइम नहीं लगेगा. इट विल बी O1 क्योंकि 3 और 4 तो प्री कैलकुलेटेड है. तो 2 के लिए मुझे नीचे जाना ही नहीं पड़ेगा, ये नीचे की तरफ ये प्री कैलकुलेटेड है. हाँ, वंश यू आर राइट, बाउंड्री चेक इज द प्रॉब्लम. यहाँ पे इस रिकरेंस के मुताबिक मैं एरे के बाहर जा सकता हूँ. तो there is a possibility कि I would be equal to A dot size and उस केस में मुझे रिटर्न मार देना चाहिए, 0 रिटर्न कर देना चाहिए. अगर एरे ही नहीं है तो सेलेक्ट भी क्या करोगे. if I equals to A dot size रिटर्न 0, इसका मतलब एरे ही नहीं है, क्योंकि एरे तो A dot size -1 पे खत्म हो रही थी. तो अगर एरे ही नहीं है तो सेलेक्ट भी कुछ नहीं करोगे, आंसर 0 हो गया अपने आप. ये कोड परफेक्ट है, बट इसमें भी अभी भी रिपीटेड कैलकुलेशंस हो रही हैं. तो रिपीटेड कैलकुलेशंस को मैं स्टॉप करने के लिए सिंपली मेमोराइज कर दूंगा अपना सॉल्यूशन. एक बार अगर मैंने इस आंसर कैलकुलेट कर लिया, मैं उसको दोबारा कैलकुलेट नहीं करता. लेट मी से इसको 10 पर 6 कर दिया. ठीक है, इसको बेटर तरीके हैं करने के, बट थोड़ा सा नूब हूं मैं तो अभी इसको ऐसे ही ले लेते हैं. इसको इनिशियलाइज कर दूंगा सबको -1. तो -1 का मतलब है कि डीपी ऑफ आई इक्वल टू -1, यानी कि मैंने अभी डीपी ऑफ आई का आंसर नहीं निकाला है. ठीक है, मान लो इसको पूरे को -1 पे इनिशियलाइज कर दिया. अब जब भी मैं आंसर कैलकुलेट करूंगा ना किसी स्टेट का, मैं उसको पहले स्टोर कर दूंगा. तो लेट्स से मैंने यहाँ पे डीपीआई का आंसर स्टोर के निकाला था, मैक्सिमम ऑफ ऑप्शन 1 ऑप्शन 2, उसको स्टोर कर दूंगा और फिर रिटर्न कर दूंगा. तो अब डीपी ऑफ आई वुड बी सम पॉजिटिव वैल्यू, अज्यूमिंग की पॉजिटिव इंटीजर था. नहीं तो और तरीके भी हैं ये चीज सेम को करने के, मैप्स के थ्रू एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट फॉर नाउ अज्यूम कि -1 इज नॉट अ पॉसिबल आंसर. तो डीपी ऑफ आई को मैंने आंसर स्टोर कर दिया. अब मैं जब यहाँ पे आऊंगा ना तो राइट आफ्टर बेस केस में चेक करूंगा कि जो मैं डीपी ऑफ आई निकालना चाह रहा हूँ कहीं मैंने पहले ही तो कैलकुलेट नहीं कर दिया. अगर मैंने डीपी ऑफ आई पहले कैलकुलेट कर दिया ना तो डीपी ऑफ आई वुड नॉट बी -1, इट वुड बी समथिंग एल्स. So if dp of I is not equal to -1, that means I've calculated it already
तो डू नॉट कैलकुलेट इट अगेन बट रिटर्न इट, तो मेरा बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब मैं डीपी ऑफ 2 पे आऊंगा ना, मुझे पता चलेगा तो पहले ही कैलकुलेटेड है क्योंकि 3 और 4 मिले हुए हैं, तो 2 के लिए जब मैं 3 और 4 की कॉल मारूंगा तो 3 और 4 तो पहले से ही कैलकुलेटेड होंगे, डीपी ऑफ 3 -1 नहीं होगा, 4 भी -1 नहीं होगा, तो इनके मैं वापस नीचे की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं वहीं से रिटर्न हो जाऊंगा कि यार टाइम वेस्ट मत करो। That's it. That is the beauty of dynamic programming. और this solution, which was previously 2 to the power n, अगर तुम बहुत स्मार्टली इंप्लीमेंट करते तो is now big of n. So that is the beauty of dynamic programming. और जो मैंने ये ग्राफ टाइप की चीज बनाई है ना, 1 depends upon 3 and 2 depends upon 3 and 4, इसको ये बेसिकली एक डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनेगा डीपी स्टेट्स के बीच में, इसीलिए इसको डीएजी रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की स्टेट्स की। तो डैग से रिप्रेजेंट करते हैं डीपी स्टेट्स को। All these circles here, these nodes are the DP states. These edges tell the dependency of that given state on other states. So this DP state depends upon state 3 and 2. तो इसीलिए outward edges, and this is known as a DAG representation of your DP states. Fine. Guys, किसी को कोई डाउट आया अभी तक या कुछ पूछना चाहता है, समझ आ रहा है नहीं आ रहा, समझ आ रहा है तो भी बता दो, अच्छी बात है, मुझे अच्छा लगेगा। कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर हम आगे मूव करेंगे। ओके, तो आई गेस क्लियर है मोस्टली लोगों को, जो बहुत अच्छी बात है। फाइन, आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम करेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी लाएंगे। ठीक है, ओके, नाइस। पलक, आकृति, सुरभि या सुरभि, नॉट श्योर, सुरभि, शिवानी, वंशी, पार्थ, वेरी नाइस यार, अच्छा लगा योर एक्सप्लेनेशन, थैंक्स मैन। ओके, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। फाइन, अब ये वाली इलस्ट्रेशन हो गई, इसमें हमने देख लिया कि डीपी स्टेट्स क्या थी। एक प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के थ्रू कैरेक्टराइज कर दिया, उसको डीपी स्टेट बोल दिया। वेरिएबल को चेंज करने से प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम से रिलेट हो पा रही थी, और एक प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम्स के बीच की जो इक्वेशन बनी उसको बोला रिकरेंस। इन सारी डीपी स्टेट्स को नोड्स मान दिया और उनकी डिपेंडेंसीज को एजेस मान दिया, आउटवर्ड एजेस, उससे डीएजी रिप्रेजेंटेशन बन गया। फिबोनाची के लिए सेम चीज ट्राई करो बनाने की। अगर मैं तुम्हें प्रॉब्लम दूं 100 फर्स्ट फिबोनाची नंबर निकालो, तो तुम्हारी जो डीपी स्टेट बनेगी क्या होगी, रिकरेंस बनेगी क्या होगी, डीएजी रिप्रेजेंटेशन बनेगा क्या होगा। फिबोनाची में रिकरेंस तो सीधा ही है, एफ ऑफ एन इक्वल टू एफ ऑफ एन माइनस 1 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 2। रिकरेंस तो पहले से ही दे देते हैं फिबोनाची में, तो कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है सच। ठीक है, एंड इसका जो आपका वो है ना डीपी स्टेट, दैट इज हाउ आई कैरेक्टराइज अ प्रॉब्लम यूजिंग वेरिएबल्स। 101 इज अ कांस्टेंट, उसको वेरिएबल बना देते हैं आई। तो एफ ऑफ आई मींस व्हाट इज द ith फिबोनाची नंबर, फाइनल आंसर हो गया एफ ऑफ 101। तो व्हाट इज द 101th फिबोनाची नंबर, मेरा आंसर हो गया एफ ऑफ 101। The relationship between various DP states is the recurrence, this one. Finally, DAG representation देखोगे तो तुम्हारा ऐसा आ जाएगा। 101 जो स्टेट है वो डिपेंड करती है 100 स्टेट पे, और 99th स्टेट पे। 100 स्टेट डिपेंड करती है 99th स्टेट पे और 98th स्टेट पे। 99th अगेन डिपेंड करती है 98 और 97 पे। बट डीपी में करोगे तो 99 प्री कैलकुलेट हो जाएगी, तो टाइम उस पे वेस्ट दोबारा नहीं करना पड़ेगा। 100 कैलकुलेट किया, 99 दोबारा नहीं करना पड़ेगा, बट एज तो तुम्हें बनाना पड़ेगा बिकॉज दिस शोज द डिपेंडेंसी, दिस इज द डिपेंडेंसी ग्राफ। तो 99 डिपेंड्स ऑन 98 एंड आल्सो ऑन 97। 98 देखोगे तो इट डिपेंड्स अपॉन 97 एंड 96। इस तरीके के जो ग्राफ बन रहा है ना, ये डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ बनेगा। बॉटम अप में इस ग्राफ के एकदम नीचे से शुरू करके ऊपर आते हैं। ठीक है, सबसे जो वो प्रॉब्लम होती है ना जो किसी पे डिपेंड नहीं करती, उससे शुरू होके ऊपर आते हैं। टॉप डाउन में ऊपर से शुरू होके नीचे जाते हैं।
कि ये किस पे डिपेंड करता है, उन पे जाओ, वो किस पे डिपेंड करती है, उन पे जाओ, जब तक तुम डायरेक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम पे नहीं हो, फाइन। और बॉटम अप दिखाने के लिए मैं एक छोटा ग्राफ लेता हूँ। लेट्स से 5 डिपेंड्स ऑन 4 and 3, 4 depends upon 3 and 2, and 3 depends upon 2 and 1, 2 depends upon 1 and 0. 0 does not depend on anyone, 1 also does not depend on anyone. जब तुम बॉटम अप लिखते हो ना, तो तुम नीचे की तरफ से ऊपर जाते हो। 0 पहले कैलकुलेट होता है, फिर 1 कैलकुलेट होता है, फिर 2 कैलकुलेट होता है, फिर 3 कैलकुलेट होता है, अब 4 होगा, फिर 5 होगा। तो बॉटम अप में मैं नीचे से ऊपर गया। दिस इज बेसिकली इस ऑर्डर में जाने को टोपोलॉजिकल सॉर्ट कहते हैं डीएजी का। तो बॉटम अप में जाने के लिए तुम्हें टोपोलॉजिकल सॉर्ट ऑर्डर में सब प्रॉब्लम्स या स्टेट्स को सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले सबसे छोटी सब प्रॉब्लम सॉल्व होगी, फिर ये, अब वो वाली होगी जो इन दोनों पे डिपेंड करती थी, एंड इस वे में ऊपर जाओगे। अभी ग्राफ बहुत सिंपल है तो बहुत इजी है, बट जब ग्राफ्स कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं तो यू हैव टू अप्लाई टोपोलॉजिकल सॉर्ट टू फाइंड आउट कि बॉटम अप कैसे करें। एंड इसीलिए लोग टॉप डाउन प्रेफर करते हैं, बिकॉज दैट इज मच मोर नेचुरल। टोपोलॉजिकल सॉर्ट वगैरह नहीं लगाना पड़ता, वो अपने आप हो जाता है। फाइन, डीएजी रिप्रेजेंटेशन हो गया। लेट अस डू रॉड कटिंग प्रॉब्लम, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरेस्ट we'll also do shortest path problem. Bookshop प्रॉब्लम मेरे चैनल पे तुम्हें मिल जाएगी, डिटेल्ड एकदम मैंने पढ़ा रखी है सेम प्रॉब्लम। तो आई एम गोइंग टू स्किप दिस वन फॉर दिस सेशन, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट ऑन माय चैनल। फाइन, तो अब रॉड कटिंग प्रॉब्लम पे आते हैं। कार्तिक अरोड़ा डीपी प्लेलिस्ट, थैंक्स अक्षय, नाइस टू सी यू हियर। ओके, तो रॉड कटिंग प्रॉब्लम में क्या है कि ना तुम्हारे पास एक रॉड है ऑफ लेंथ n, ठीक है, एक n लेंथ की रॉड है, और जो कस्टमर्स आते हैं ना वो तुम्हें अलग बेसिकली तुम्हारे पास सेल करने का ऑप्शन है। तुम इस लेंथ इस रॉड का कुछ छोटा हिस्सा काट के बेच सकते हो, या फिर साथ में पूरी n लेंथ की रॉड बेच सकते हो, या फिर 2 इंच की, 3 इंच की, 10 इंच की या 10 मीटर, जो भी 10 मीटर की रॉड बेच सकते हो, ये सारी की सारी बेच सकते हो। तो इमेजिन कि तुम्हारे पास 100 मीटर की रॉड है। अब बस डिफरेंस क्या है कि ना तुम्हें प्राइस लिस्ट गिवन है कि जो 1 मीटर की रॉड है दैट इज गोइंग टू सेल फॉर द प्राइस P1, 2 मीटर की रॉड है जो दैट विल सेल फॉर द प्राइस P2 and so on, right? That is the idea. N मीटर की रॉड is going to sell for the price Pn. अब पहले तो मुझे एक बात बताओ कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट थोड़ी आइडिया लग रही है क्या है? प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि तुम उस रॉड को कैसे बेचोगे सो दैट तुम मैक्सिमम पॉसिबल प्रॉफिट कमा पाओ या मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस में बेच पाओ। ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, ठीक है। एंड तुम्हें दे रखा है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ रॉड्स के प्राइसेस कितने हैं, एक एरिया में दे दिया P1, P2, P3, Pn, राइट। तुम्हारे पास ये एरिया है कि 1 मीटर की रॉड बेचोगे तो ये पैसा मिलेगा, 2 मीटर की बेचोगे तो ये मिलेगा, n मीटर की बेचोगे तो इतना पैसा मिलेगा, और i मीटर की रॉड बेचोगे तो pi प्राइस पे बेचोगे। टोटल लेंथ तुम्हारे पास n है, इसको एक बारी में बेचना चाहते हो, 4 बारी में बेचना चाहते हो, कैसे बेचोगे कि मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस तुम्हें मिले। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस किस को क्लियर है एक बार बता दो, किसी को क्लियर नहीं है तो वो लोग पहले बताओ, और क्लियर है तो यार वो तो बहुत ही अच्छी बात है। Let me give you an example. We understood knapsack. Yeah, we have choice for each element. Unbounded knapsack. Knapsack कह सकते हैं, कह सकते हैं guess. Bookshop problem जो है वो pure knapsack है। Bookshop problem बहुत पसंद आएगी, उसको जरूर ट्राई करना। तो हाँ ठीक है, आइडिया तुम्हें लग गया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल फिर भी ले लेते हैं कि मान लो 1 लेंथ की रॉड का प्राइस है 3 रुपीज, 2 लेंथ की रॉड का प्राइस है 4 रुपीज, 3 लेंथ की रॉड का प्राइस है 6 रुपीज, 4 लेंथ की रॉड का प्राइस है मे बी 7 रुपीज। मेरे पास टोटल लेंथ है रॉड की 4। मैं इसको किस तरीके से बेचूं कि मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। अगर मैं पूरी की पूरी रॉड एक बारी में बेचूंगा तो मैं 7 रुपीज कमाऊंगा, राइट। 4 मीटर एक बारी में बेच दिया, 7 रुपीज मिल गए। अगर मैं
एक बारी में लेट्स से मैं इसको इस तरीके से बेचूं कि मैं 1 मीटर की रॉड बेचूं एक बारी तो 3 रुपए मिले, और अभी मेरे पास 3 मीटर की रॉड और बचती है, राइट? 1 मीटर की बेच दी रॉड, 4 मीटर की थी, 1 मीटर काट के बेचा, 3 रुपए मिले। 3 मीटर की रॉड बच रही है। अब इसको लेट्स से मैंने एक बार में बेच दिया तो 6 रुपए, तो दिस इक्वल्स टू 9 रुपीज इन टोटल। ठीक है, पहले से तो बेटर है, 7 से ज्यादा है, बट कैन आई डू बेटर ऑन दिस? मे बी आई कैन। अगर मैं इसके 4 टुकड़े करके 1-1 मीटर के बेच दूं तो कितने कमाऊंगा? देन आई एम गोइंग टू अर्न 12 रुपीज, 3 + 3 + 4 टाइम्स, ठीक है ना? तो दैट इज इवन बेटर। और अगर मैं दो दो करके दो बारी बेचूं तो 8 रुपए, वो इतना अच्छा नहीं है। और कुछ कर सकता हूँ? अगर मैं 3-3 करके दो का बेचूं और फिर 4, नहीं। तो आई थिंक दिस इज इन दिस केस इट इज बेस्ट कि मैं उसके 4 टुकड़े करके बेच दूं और 12 रुपए कमा लूं, राइट? इसको इसकी वैल्यू थोड़ी कम करके एक बार देखो, फिर बताओ क्या आंसर बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 1 होती कि 1 मीटर की रॉड का प्राइस बहुत ही कम है यार, पता नहीं क्यों, लेकिन सेंस नहीं बनती ना, तो 2 रुपए तो रख ही देते हैं मिनिमम। ये 2 कर दो और इसको 5 कर दो, तो 2 4 5 6 और 2 4 5 7। इस केस में आंसर बताओ क्या बनेगा? पार्थ, यू कैन यूज द सेम लेंथ। आइडिया इसकी, तुम्हारे पास एन लेंथ की रॉड है, उसके तुम 1 1 के भी बहुत सारे पीसेस कर सकते हो, 2 2 के भी बहुत सारे पीसेस कर सकते हो। लिमिटेशन ये है कि उन पीसेस का जो सम है वो एन बनेगा, मतलब तुम्हें पूरी रॉड सेल करनी है, उसके पीस किस लेंथ के कर रहे हो वो तुम्हारी ऑप्शन है। इमेजिन कर लो ना कि हाथ में रॉड है, उसको किस तरीके से तोड़ रहे हो वो तो तुम्हारे ऊपर है। एंड ये मान सकते हो कि हर लेंथ के लिए कस्टमर है, बिक जरूर जाएगी। ठीक है, इसका आंसर कह रहे हैं सब 8। 8 कैसे होगा? 8 होगा कि 2 2 के 4 टुकड़े, सही है वैसे, लेकिन अगर मैं, हाँ तो भी 2 2 के 4 टुकड़े बेटर है। और अगर ये 7 हो जाए और ये 8 हो जाए, अगर ये 7 हो जाए तो इस केस में आई गेस हो जाएगा कि 7 + 2 9 हो जाएगा, राइट? कि एक बार 3 मीटर का बेच दो और एक बार 1 मीटर का बेच दो, राइट? फाइन, ओके गुड। तो आई गेस सबको प्रॉब्लम का आइडिया लग गया है, सोल्यूशन सोचने की कोशिश करो। एंड वंस अगेन मुझे ब्रूट फोर्स सोल्यूशन चलेगा, ठीक है? ट्राई कि तुम्हारा सोल्यूशन करेक्ट हो, करेक्टनेस पे फोकस करके एक ब्रूट फोर्स बना दो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हारा गोल है कि मैं प्रॉब्लम को सही तरीके से सॉल्व करूं और प्राइस जो ऑप्टिमल है वो बता दो कि 15 रुपए है तो 15 ही आंसर आ रहा है, ऐसा नहीं 13 14 आ रहा है, चाहे मैं एन फैक्टोरियल में कर रहा हूं चाहे मैं एन 2 पावर एन में करूं। ओके, तो होपफुली थोड़ा सा कुछ सोचा होगा कि हाँ यार बड़ी रॉड है, हम क्या करते हैं रॉड के हर हर पॉसिबिलिटी करके देख लेते हैं। ब्रूट फोर्स तो यही होता है ना कि मैं रॉड को पहले 1 मीटर के पीस में भी काट के देख लूंगा, फिर मेरा जो लेट्स से पी एन साइज की रॉड है, मेरे को बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, मैं सबको ट्राई करके देखता हूँ। मैं इसको 1 मीटर का पीस काटता हूँ पहले और फिर देखता हूँ, फिर n-1 मीटर की रॉड बचेगी, इसको सेल कर दूंगा, है ना? पहला ऑप्शन मेरे पास ये है कि फर्स्ट पीस जो मैं बेच रहा हूँ वो 1 मीटर का बेच दूं, या फिर मैं 2 मीटर का बेच सकता हूँ, फिर मेरे पास n-2 लेंथ की रॉड बचेगी, या फिर मैं 3 मीटर का भी बेच सकता हूँ, 4 का, सो ऑन, राइट? तो अगर मैं आई मीटर का पहला पीस आई मीटर का कट करूं, ये n मीटर की रॉड में से मैंने आई मीटर का एक पीस कट करा और सेल कर दिया, मेरे पास रॉड बची n-i मीटर की, और मैं इसमें भी सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करूंगा, या फिर मैं सारी n-मीटर की रॉड एक बार में बेच दूं और 0 मीटर की रॉड बेच दूं। अब देखो आइडिया क्या है, सिंस आई एम ट्राइंग आउट ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, n-1 के आगे भी मैं सब ट्राई करने वाला हूं। सब कुछ ट्राई करूंगा टिल दी बॉटम, n-1 के लिए भी
हर तरीके से सेल करके देखूंगा पहला पार्ट, और उसके बाद जो रिमेनिंग होगा उसका भी हर तरीके से सेल करके देखूंगा। इनमें से सबसे जो बेस्ट मुझे आंसर मिल रहा होगा ना, यहाँ लूंगा। इन सब में से जो बेस्ट मिल रहा होगा, ऐड करके 1 का प्राइस, 2 का प्राइस, इस तरीके से वो n का आंसर लूंगा। सिंस आई एम ट्राइंग आउट ईच एंड एवरी पॉसिबिलिटी, गलत तो हो ही नहीं सकता ना यार, क्योंकि जो भी सही आंसर होगा उसमें कुछ पीसेस सेल कर रहे होंगे, एंड दैट विल गेट कवर्ड हियर, दैट विल गेट कवर्ड हियर। तो गलत होने का तो कोई चांस ही नहीं है इस तरीके से। बस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है, बिकॉज यार यहाँ तक नीचे तक जाओ, उसके बाद 2 मीटर के लिए भी नीचे तक सब कुछ सॉल्व करके देखो, तो पॉइंट क्या है कि तुम्हारा कॉस्टली बहुत ज्यादा है इसको कंप्यूट करना, बट गलत होने का कोई चांस नहीं है, सिंस यू आर ट्राइंग आउट एवरीथिंग। दिस इज एन एग्जॉस्टिव सर्च फॉर द आंसर। फाइन, तो ये समझ आया या नहीं कि ये गलत क्यों नहीं हो सकता? एंड हाँ ठीक है, इसको ऊपर से नीचे तक कर देंगे। सर्वेश कह रहे हैं कि n पावर n बनेगा। हाँ यार, n पावर n भी बन सकते हैं। इस बारे में मैं इतना श्योर नहीं हूँ कि एग्जैक्टली n फैक्टोरियल होगा या n पावर n होगा या 2 पावर n होगा। पहली बार में n ऑप्शंस हैं और फिर नीचे जाने के, हाँ राइट यार, सही कह रहे हो, यहाँ पे मेरे पास n ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे n-1 ऑप्शंस हैं, तो ये मल्टीप्लाई होता जाए, n पावर n ही बनेगा जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है, राइट। तो दिस इज, यू कैन सी, रियली वेरी बैड। अब ट्राई करना ऑप्टिमाइज करने की। सबसे पहले डीपी स्टेट बनाओ। डीपी स्टेट यानी कि प्रॉब्लम को कैरेक्टराइज करो यूजिंग वेरिएबल्स। 100 मीटर की रॉड थी एक्चुअल क्वेश्चन में, है ना, एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट में 100 मीटर की रॉड थी और सारे प्राइजेस दिए थे। इसको एक वेरिएबल के थ्रू प्रॉब्लम को एक्सप्रेस करने की ट्राई करो। कमेंट्स में लिखो, 1 मिनट दे रहा हूँ, पानी पी लेता हूँ। हाँ, तो देखो इस प्रॉब्लम को कैरेक्टराइज करना बहुत ही ज्यादा इजी है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज द बेस्ट प्राइस in which you can sell a 100-meter rod by cutting it in various possible ways, in whichever way you want in fact. तो मैं DPI बना देता हूँ। What is the maximum possible price you can get? Max price I can get by selling a rod of length I and by making whatever cuts I want. Make any cuts you want. है ना, तो फाइनल आंसर कौन बताएगा? इस डेफिनेशन के हिसाब से डीपी ऑफ आई की डेफिनेशन ये है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस यू कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ आई so that you can make whatever size cuts on that I length rod you want. तो सबसे ज्यादा प्राइस क्या मिल सकता है? फाइनल आंसर बताओ क्या बनेगा? ये है डीपी ऑफ आई। इस रॉड को कैसे मर्जी काटो बेचो और बेस्ट पॉसिबल प्राइस जो है वो है डीपी ऑफ आई। डीपी ऑफ आई कॉमा एक्स, डीपी ऑफ आई कॉमा एक्स का क्या मतलब? मैक्स प्रॉफिट विद आई एलिमेंट ऑफ लेंथ एक्स। ओके, तुम ऐसे सोच रहे हो कि पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, बट मुझे एक बात बताओ, फर्क पड़ता है कि पहला एलिमेंट 2 साइज का हो या दूसरा एलिमेंट 2 साइज का हो? मतलब मैं पहला कट 1 लेंथ का मारूं या मैं 5वां कट 1 लेंथ का मारूं, क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा उस ऑर्डरिंग से? नहीं पड़ेगा, राइट। फर्क तो सिर्फ ये पड़ता है कि फाइनली मैं इस आई को किस हिस्सों में बेच रहा हूँ। अब चाहे मैं इसको 5 लेंथ की रॉड को 2 और 3 में बेचूं या 3 और 2 में बेचूं, एक ही बात है ना। तो मैं इस चीज को आउट ऑफ द कंसिडरेशन कर सकता हूँ कि मैं पहले 2 बेचता हूँ या पहले 3 बेचता हूँ। मैं इसको ऐसी ऑर्डर करूंगा कि मैं पहले 2 बेच रहा हूँ फिर 3 बेच रहा हूँ, दैट्स अप टू मी। तो ये चीज तो भूल जाओ, ठीक है। फाइनल आंसर क्या होगा, मैं बस इतना पूछ रहा हूँ। तो इस केस में जो फाइनल आंसर होगा ना, सिर्फ प्रॉब्लम स्टेटमेंट रीड करो और डीपी ऑफ आई की जो आई को सही नंबर से रिप्लेस कर दो। मेरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस इन व्हिच आई कैन सेल अ 100-meter रॉड टू मेक मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट, या फिर मैक्स प्राइस दैट आई कैन गेट बाय सेलिंग अ n-meter रॉड and by making any whatever cuts I want on that rod. So by definition it is DP of n. My final answer by definition is DP of n. Max price
that I can get by selling a rod of length n by making whatever cuts I want in that rod. Right. तो dp of n मेरा फाइनल आंसर है. अब इसको देखते हैं कि इसको लिख कैसे सकते हैं. dp of n निकालना भी तो पड़ेगा, वही तो मेन दिक्कत है. तो dp of I के लिए फोकस करते हैं. अभी हमने देखा था ब्रूट फोर्स में, सबको ट्राई करके देख लो. अभी भी वही करेंगे. डीपी इसीलिए इतना पॉपुलर है और इतना यूजफुल है बिकॉज तुम सेम ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को सिर्फ थोड़ा सा स्मार्टली इधर उधर करके बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हो. एंड तुम्हें देखिए, मैं कॉम्प्लेक्सिटी भी पूरी कैलकुलेट कराऊंगा कि बेटर कैसे हुई. n पावर n थी जैसा हमने सर्वेश ने बताया था. विल कैलकुलेट कि इंप्रूव कैसे हुई डीपी से. तो देखो, आई लेंथ की रॉड है. डिस्कस क्या किया था कि अब इस आई लेंथ रॉड में मैं कुछ हिस्सा बेचने की सोच रहा हूँ. या तो मैं 1 मीटर का बेचूंगा, या 2 मीटर का बेचूंगा, या 3 मीटर का, या फिर पूरी रॉड ही बेच दूंगा, है ना. ये डिस्कस हुआ था. तो अगर मैंने 1 मीटर का बेचा तो बताओ क्या होगा. 1 मीटर का अगर मैं बेचूंगा तो सबसे पहले तो मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे. P1 तो मुझे मिल गया बिकॉज मैंने 1 मीटर का बेच दिया. यहाँ पे कट मारा, ये 1 मीटर की रॉड बेच दी. अब मेरे पास बची I-1 मीटर की रॉड. I-1 के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ. मैं चाहूंगा कि रिमेनिंग पार्ट जितना ज्यादा पॉसिबल प्राइस पे बेचना चाहूँ उतने पे बेच दूं. कोई बता सकते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट आई कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ I-1. बाय डेफिनेशन क्या होगा वो प्राइस. 1 लेंथ की रॉड बेच दी, I-1 से कितने मैक्सिमम पैसे कमा सकता हूं मैं. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. वो बाय डेफिनेशन क्या होगा. Okay. Guesses? Any guesses? Okay. तो मैं बता देता हूँ. आई लेंथ की रॉड बेची, I-1 के लिए ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट चाहूंगा अपना बस. तो सिंपली उसका बेनिफिट तो अपने आप ही डीपी ऑफ I-1 है ना. I-1 को मैक्सिमम कितने प्राइस में बेच सकता हूँ. दैट इज नथिंग बट डीपी ऑफ I-1. द मैक्स प्राइस दैट आई कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ I-1. दैट्स इट. ये यार, ये वाला आई ना वो है आई. ये वो थोड़ी कंफ्यूजन हो जाएगी, तो मैं इसको चेंज कर दूं. I can get by selling a rod of length I. Max price I can get by selling a rod of length I-1. ये ठीक है ना. और फिर मैं देखूंगा कि मैं 2 मीटर का पीस भी बेच सकता हूँ पहले. इस केस में क्या होगा, अगर मैंने 2 मीटर का पीस बेच दिया तो मैं I-2 लेंथ की रॉड को देख रहा हूँ और उसको ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट पे बेचना चाहूंगा. P2 तो मुझे ऑलरेडी मिल गया क्योंकि मैंने 2 मीटर की रॉड अभी बेची. और फाइनली डीपी ऑफ I-2 मुझे रिमेनिंग रॉड से मिलेगा. अगर मैं आई लेंथ की रॉड बेच दूंगा तो व्हाट इज द मैक्स प्राइस आई कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ 0. बिकॉज अब पूरी बेच दी तो बचा क्या, 0 मीटर की लेंथ रॉड बच गई. तो इन सारी पॉसिबिलिटीज में से अगर मैं बेस्ट पॉसिबिलिटी सिलेक्ट कर लूं, दैट इज माय आंसर, इजंट इट. और डीपी ऑफ 0 क्या होगा. अगर तुम कुछ बेच ही नहीं रहे, तुम्हारे पास 0 मीटर की रॉड है, तो तुम 0 रुपीज ही कमाओगे. तो डीपी ऑफ 0 इज ऑटोमेटिकली 0. तो अब मैं इसकी एक रिकरेंस लिख देता हूं एंड देन वील मूव टू द कोड. तो एज डिस्कस्ड, डीपी ऑफ आई इज गोइंग टू बी नथिंग बट I have various possibilities. या तो मैं 1 मीटर की रॉड बेचूं, P1 रुपीस कमाऊं और रिमेनिंग रॉड को मैक्सिमम प्राइस पे बेच दूं, दैट इज डीपी ऑफ I-1 पे. या फिर मैं P2 2 मीटर की रॉड बेचूं आई में से और रिमेनिंग I-2 की लेंथ की रॉड को मैक्सिमम पॉसिबल प्राइस पे बेच दूं, तो डीपी ऑफ I-2. सो अनटिल मैं पूरी की पूरी रॉड बेच दूं एक बारी में और रिमेनिंग रॉड को, रिमेनिंग 0 मीटर की रॉड को मैक्सिमम प्राइस पे बेचूं, व्हिच इज 0. तो these are the n number of possibilities. इनमें से I'm going to choose whichever gives me the best answer. ये रिकरेंस है. डीपी स्टेट को बाकी डीपी स्टेट से रिलेट कर दिया, ये मेरी रिकरेंस बन गई. अब इसका कोड लिखेंगे तो तुम्हें और क्लैरिटी मिलेगी. एक सेकंड लो यार, कोड में सुंदर कलर आने चाहिए. ये अच्छा लग रहा है.
तो मैक्स प्राइस निकाल रहे हैं हम एक रॉड ऑफ लेंथ n के लिए या रॉड ऑफ लेंथ i के लिए निकाल लेते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस आई कैन सेल दिस रॉड ऑफ लेंथ i फॉर. और मान लेते हैं मेरे पास फ्रेजेस क्या है या बॉटम अप कोड लिखते हैं राइट. अक्षय कह रहा है if I consider DPIX I can find recurrence as max of this. हाँ तुम डीपी स्टेट्स में ज्यादा वो तो रख ही सकते हो यार. ऐसा नहीं है कि तुम डीपी स्टेट में एक ही वेरिएबल लो या दो ही वेरिएबल लो, कितने भी वेरिएबल ले सकते हो. बस बात क्या है तुम्हारी डीपी स्टेट जितने कम वेरिएबल से कैरेक्टराइज हो पा रही है ना, मोस्टली तुम्हारी कॉम्प्लेक्सिटी उतनी बेटर होगी. इस पर्टिकुलर केस में आई थिंक तुम्हारा सोल्यूशन भी n स्क्वायर्ड ही बनेगा, बट तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी मेरे सोल्यूशन से. और डीपी में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ एक ही तरीका होगा स्टेट्स और रिकरेंस बनाने का. बहुत सारे तरीके होंगे. अभी तुमने ये दो डायमेंशन के साथ एक डीपी बना दिया है, 3 के साथ भी बन सकती है, 4 के साथ भी बन सकती है. दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ हाउ यू आर अप्रोचिंग द प्रॉब्लम, हाउ यू आर थिंकिंग ऑफ सॉल्विंग इट. अब तुम्हारी अप्रोच जो मुझे समझ आ रही है कि i एंड x, तो j माइनस रॉड ऑफ i, आई एम नॉट श्योर कि एग्जैक्टली तुमने किस वे में सोचा, बट आई थिंक कि इस तरीके से सोच रहे तुम कि पहला हिस्सा अगर इतने मीटर का होगा और दूसरा हिस्सा इतने मीटर का होगा, उस आइडिया से कुछ. तो यू कैन अप्रोच अ डीपी प्रॉब्लम इन वेरियस वेज. दिस इज द वन इन व्हिच आई हैव अप्रोच्ड इट. तो दैट्स ओके. ऐसा नहीं है कि अलग है तो गलत ही होगा, सही भी हो सकते हैं, दोनों सही हो सकते हैं, और 2-3 तरीके और भी होंगे. तो कोई नहीं, अभी इस पे ध्यान देते हैं. तो लेट्स से मेरे पास एक वेक्टर ऑफ प्राइसेस जो कि मुझे आज इनपुट मिल गया, and this is also one based. राइट. तो मेरे पास एक वेक्टर है, इसमें प्राइस एट आई बताता है कि आई रॉड कितने की सेल कर सकता हूं मैं. अब मैं क्या करूंगा, मैं फॉर गिवन लेंथ ऑफ बेसिकली डीपी ऑफ आई निकालने की ट्राई करूंगा, where I is the length of the rod that I'm trying to sell at the best possible benefit. So let's say I'm trying to sell a rod of rod length, and this rod length could be 0, 1, 2, 3, so on. My final answer should be when rod length is equals to n. n भी मान लो इनपुट में कह रहे हैं कि n लेंथ की रॉड के लिए बताना है. फाइन. तो मान लेते हैं मैंने डीपी अरे ले ली जिसमें मैं अपने सोल्यूशन स्टोर करने वाला हूँ. max price in which I can sell rod of length I. और ये वेक्टर है, डायमेंशंस कर देते हैं इसकी n कर दो, n+1 कर दो, जितनी भी कर दो. n भी मान लो तुम्हें यूजर से इनपुट में मिल रहा है, ये प्राइस से n साइज दे रही है जिसमें p1 p2 सब दे रखा है. अब मैं ट्राई करूंगा कि रॉड लेंथ 1 के लिए आंसर क्या होगा, up to rod length less than equal to n. rod length मैं हर rod length के लिए आंसर निकालूंगा, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, so on, right, up to the rod length equal to n. मैं ये निकालने की ट्राई करूंगा. फाइनल आंसर क्या है मेरा? फाइनल आंसर सिंपली मैक्स प्राइस सेल रॉड एट n. इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए. बस ये मेरा फाइनल आंसर होगा, इस बात में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए. मैक्स प्राइस सेल n+1 है, ठीक है, राइट. और व्हाट इज मैक्स प्राइस सेल रॉड 0, यानी कि 0 लेंथ की रॉड है. व्हाट इज द बेस्ट प्राइस यू कैन गेट बाय सेलिंग दिस रॉड? सिंस रॉड है ही नहीं, या 0 मीटर की है, तो आंसर भी 0 है. अब ट्राई करेंगे मैक्स प्राइस सेल रॉड ऑफ आई, या फिर इस पर्टिकुलर लेंथ की रॉड को जब मैं सेल करने की ट्राई करूंगा तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस आई कैन गेट. एज डिस्कस्ड मैं इसको हर तरीके से तोड़ने की ट्राई करूंगा. अभी के लिए मैं इसको मार्क करता हूं कि मैक्स प्राइस सेल रॉड इक्वल्स टू 0. मान लो मैंने अभी के लिए मैक्स प्राइस सेल रॉड को 0 कर दिया. 0 इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, ठीक है, बिकॉज़ आई इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी पॉजिटिव, सॉरी रॉड लेंथ इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी पॉजिटिव. तो अभी मैंने इसको 0 मार्क करा. अब वही जो डिस्कस किया था हमने ग्राफ बना के, सबको ट्राई करूंगा. सो मैं इस पर्टिकुलर लेंथ के कट को सेल करूंगा, सेल कट. आई एम ट्राइंग टू सेल अ कट ऑफ लेंथ इक्वल टू 1. इस रॉड लेंथ में से 1 साइज का कट मारा
बेच के देखा, फिर देखा आंसर 2 साइज का कट मारा, 3 साइज का कट मारा, या फिर सारी एक बारी में बेच दी। तो सेल कट को 0 से शुरू किया, सो until less than rod length। इनफैक्ट इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे प्राइस ऑफ रॉड लेंथ कर देता हूँ। अगर एक बारी में बेचूंगा तो आंसर क्या, ठीक है, अगर एक बारी में बेच रहा हूँ तो मैक्स प्राइस सेल रॉड को अभी के लिए उस पर इनिशियलाइज कर दिया, और अब रिमेनिंग कट्स मार के देख लेता हूँ। कट 1 साइज का मारूंगा, कट 2 साइज का, सो until कट रॉड लेंथ -1 साइज का भी मारूंगा, और इनमें से देखूंगा बेस्ट कहाँ आंसर आ रहा है मेरा। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटीज। अब देखो, अगर मैं इस लेंथ का जो कट है मार के उस रॉड को सेल करता हूं, तो मुझे प्राइस कितना मिलेगा, जितना कट मैंने सेल किया। 1 साइज का किया तो उतना मिलेगा, 2 का किया तो उतना मिलेगा, प्लस रिमेनिंग रॉड के लिए आंसर क्या। अब मैंने अगर इतना पर पार्ट बेच दिया, इतने पार्ट में से मैंने सेल कट पार्ट बेच दिया, तो रिमेनिंग वुड बी रॉड लेंथ माइनस सेल कट, और उसको मैं मैक्सिमम उसमें कैसे अर्न कर सकता हूँ, मैक्सिमम प्राइस दैट आई कैन गेट बाय सेलिंग अ रॉड ऑफ लेंथ, rod length minus cell cut. By definition, it is max price cell rod at that particular length for the remaining rod, right? For the remaining length of the rod. अब या तो ये अच्छा होगा, या फिर एक बारी में बेचना ही बेटर था, या फिर कोई और, राइट? Basically, this is one of the n number of options. तो इस ऑप्शन को मैं बाकी ऑप्शन के साथ कंसीडर कर लूंगा। My answer is going to be one of these 2 options. One of the option is कि इस कट पे बेच दो, या फिर जो पहले बेस्ट था उसी को रहने दो, and that's it. अब अगर इस कोड को तुम देखोगे तो दिस कोड इज कंसाइज। वो तो मैंने वेरिएबल के नाम बहुत बड़े रखे हैं, बट ओवरऑल दिस कोड इज क्वाइट कंसाइज। This code is bottom up, and it is very easy to analyze the time and space complexities here. Space and time complexity कौन बताएगा जल्दी से? Space and time complexities बताओ। इसके बाद I'll just discuss the materials and resources that you can use to further enhance your DP skills. अभी मैंने simple basics cover करे हैं, right? So वंशी से n square time है, अक्षय से n square, right? n square कैसे है यार, ये वाला जो outer loop है this will run n times and inner loop will run approximately n times only, तो n into n हो गया। and space complexity is simply मैंने एक extra array लिया n size की, तो that is O, right? and तुम कोड देख रहे हो काफी कंसाइज है, तो बॉटम अप का ये बेनिफिट है कि तुम्हें स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना बहुत इजी हो जाता है समझना, बहुत ज्यादा इजी है यार। 2 लूप हैं तो कोई भी बता देगा क्या बन रही है कॉम्प्लेक्सिटी, और आंसर बस यहाँ पे आ गया, लूप्स के राइट आफ्टर तुम्हारा आंसर यहाँ स्टोर हो गया। ठीक है, अब लेट मी शो यू द ओवरव्यू जो प्लान था। शॉर्टेस्ट पाथ इन अ ग्राफ फ्रॉम U to V। यार ओवरऑल ना ये प्रॉब्लम मुझे काफी ब्यूटीफुल सी लगती है, इसलिए मैंने रख ली थी। इसका जो सोल्यूशन है काफी एलिगेंट होता है। मेजरली एक डायरेक्टेड अगर ग्राफ है, U से स्टार्ट कर रहे हो और तुम और नोड्स तक जा रहे हो, तो U से V तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? तो इसको तुम रिकर्सिवली डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू तोड़ोगे ना अगर, तो U to V जो शॉर्टेस्ट पाथ हो जाता है, दैट इज कि अगर तुम DP ऑफ U को मान लो द शॉर्टेस्ट पाथ दैट स्टार्ट्स एट U एंड एंड्स एट V, तो DP ऑफ U इज नथिंग बट DP ऑफ द नेबर ऑफ U। U से U के किसी नेबर पे जाओ, that is 1. So 1 for the distance from to go from U to one of its neighbor, and फिर neighbor से देखो what is the shortest path starting at this neighbor of U and ending at V. That would be DP of neighbor, where DP of I means what is the shortest path that starts at node I and ends at node V. This is a directed acyclic graph, and DP of U is simply 1 plus DP of neighbor of U. And you try doing this for each and every neighbor of U. And DP of V is simply 0. The shortest path that starts at V and ends at V.
तो DAG ये अच्छी प्रॉब्लम लगती है, सिर्फ इसलिए मैंने इसको ले आया, राइट, दैट्स इट। इसके बाद यार एक बुक प्रॉब्लम करवानी थी जो कि वेरी सिमिलर टू नैपसैक प्रॉब्लम, बट मैं नहीं कर रहा ड्यू टू टाइम लिमिटेशन, बट आई एम ऑल्सो। और क्या क्या होता है डीपी में, तो यार डीपी विद बिट मास्किंग है, डीपी विद डिजिट डीपी है, डीपी ऑन ग्राफ्स। तो डीपी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बट सब कुछ ब्रेक डाउन हो जाएगा सिर्फ इन थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट्स पे। डीपी स्टेट के, रिकरेंस के, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं, और प्रॉब्लम को वेरिएबल्स के थ्रू प्रॉपर्ली कैरेक्टराइज कर पा रहे हैं नहीं, और एक प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम से रिलेट कर पा रहे हैं। मुश्किल से मुश्किल डीपी का प्रॉब्लम इस सब पे ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, तो हम डीपी विद बिटमास्क की पूरी प्लेलिस्ट है। इससे जब थोड़ा सा आइडिया लगने शुरू हो जाए तो डीपी विद बिटमास्क की लेते हो, डिजिट डीपी की पूरी प्लेलिस्ट ऊपर से नीचे तक, इंट्रोडक्शन बहुत ही बेसिक शुरू होकर नीचे तक, डीपी ऑन ट्रीज की भी बिल्कुल बेसिक से शुरू होकर नीचे तक है, एंड क्या है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो इसको तुम यूज कर सकते हो टू ग्रास्प योर कॉन्सेप्ट्स। बेसिक एलिमेंट्स ऑफ डीपी, डिवाइड एंड कॉन्कर पढ़ा है इसमें, एंड देन और जैसे डीपी स्टेट्स शॉप प्रॉब्लम है ये वाली प्रॉब्लम मैंने इसमें मैं यार फुल रिकमेंड करूंगा कि तुम यार इस प्रॉब्लम को तो कर ही लेना, और करो या ना करो, ये मैंने इस सेशन के लिए प्लान थी। दिस इज अ गुड प्रॉब्लम जो तुम्हारे को ओवरऑल बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काम आएगी, इंटरव्यू प्रॉब्लम्स में काम आएगी। दिस आई हाईली रिकमेंड। अनदर प्रॉब्लम एरे डिस्क्रिप्शन इज वन दैट आई हाईली रिकमेंड। बाकी सारी एडिट डिस्टेंस वगैरह जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं, जो हार्डर प्रॉब्लम्स हैं वो भी हैं। फॉर एग्जांपल बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक्स बहुत ज्यादा कॉमन है इंटरव्यूज में, उसके सारे वेरिएंट्स एक सिंगल वीडियो में हैं। एंड हार्डर प्रॉब्लम्स भी हैं जो आपका किक स्टार्ट वगैरह में जो हार्ड प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यू कैन गो थ्रू ऑल दिस सीरीज, बाइंग लिफ्टिंग मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो अपनी डीपी स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और फिर जब डीपी की और प्लेलिस्ट के लिए रेडी हो और डेप्थ में जाने का मन हो तो ये सब फॉलो करना शुरू कर सकते हो, राइट। तो दैट्स इट आई गेस फ्रॉम माय साइड। अब थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं एंड देन वी कैन क्लोज फॉर द डे आई गेस। तो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के लिए एक आधा सेट और बता देता हूं मैं। सीएसीएस की प्रॉब्लम सेट मैंने कवर किया था, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। मैंने एक सीएसीएस की प्रॉब्लम सेट कवर करा हुआ है, इसमें डीपी सेक्शन है, ये मैंने सारा कवर करा हुआ है अपने चैनल पे, एंड ये सारी प्रॉब्लम्स अच्छी भी हैं, तो खुद से ट्राई करो। हिंट चाहिए तो वीडियोस तो हैं ही, तो एक बैकअप रहता है दिमाग में। दूसरा है एट कोडर डीपी प्रॉब्लम सेट, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, तो इनिशियली सीएसीएस पे जाओ, साथ में मेरी वीडियोस फॉलो करो, एंड उसके बाद इस प्रॉब्लम सेट आके इसकी प्रॉब्लम्स ट्राई करो। रियली गुड प्रॉब्लम सेट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इनिशियली प्रॉब्लम्स उतनी हार्ड नहीं है, बट जैसे जैसे नीचे जाओगे थोड़ी सी हार्ड है, बट मोस्टली के सोल्यूशन मेरे चैनल पे मिल सकते हैं। डिजिट सम का इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, डिजिट डीबी पे हो जाएगा, डीपी ऑन ट्रीज वाले भी मेरे चैनल की हेल्प से हो जाएंगे, बिट मास्किंग वाले भी हो जाएंगे। तो दिस इज अनदर रियली गुड रिसोर्स मैं डीपी में स्ट्रांग। फाइन, तो ये तो दो रिसोर्सेज हो गए, कोड फोर्सेस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड एक और वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने अपना इसी पे बात करी थी कि इंटरव्यू प्रेप के लिए कुछ कोडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पे हैं, कुछ अच्छी रिसोर्सेज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने पूरा शेयर किया था, वो ये वीडियो है, इसको चेकआउट कर सकते हो, मास्टर डीएसए। इसमें यार मैंने काफी सारी रिसोर्सेज शेयर करी हैं, यू कैन ट्राई दिस वन आउट, राइट। तो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अब यार क्वेश्चंस पूछो अपने, तुम्हें जो जो आ रहे हैं, एंड be open, whatever you want to ask you can ask, and then we'll end the session. अक्षय भैया 1Q ये रिकरेंस लिखना क्या प्रैक्टिस ही है? ये नहीं समझा मैं कि तुम्हारा एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या है अक्षय। Is DP with Bitmask, DP with digit important for interview perspective? Digit DP तो पूछ सकते हैं इंटरव्यू में,
डीपी विद बिट मास्किंग से यार तुम्हारा ओवरऑल डीपी में कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, बिट मास्किंग कॉन्सेप्ट समझ आ जाएंगे, बिट मास्किंग तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मैं कहूंगा कि डीपी विद बिट मास्किंग ना तुम्हें ज्यादा कंपनीज के इंटरव्यू में नहीं मिलेगी, कुछ में डेफिनेटली मिल सकती है, मैंने तो देखे हैं डीपी विद बिट मास्किंग के प्रॉब्लम्स। बट मैं अगर एक नॉर्मल कंपनीज की बात करूं जो बिग टेक हैं, आई डोंट थिंक दे एक्चुअली आस्क डीपी विद बिट मास्किंग। करना चाहिए हाँ, इंट्रोडक्शन तो कर लो, कॉन्फिडेंस, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, फायदा ही होगा। तो आई वुड से कि एक घंटा स्पेंड करके अगर आईडी कॉन्सेप्ट ग्रास्प हो सकता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर लो। डेप्थ में घुसने की यार कि 2600 रेटेड प्रॉब्लम्स कर रहे हो कोड फोर्सेस पे बिट मास्किंग की, तो नहीं, उसकी नीड नहीं। टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप डीपी। ऋषभ अब ये क्वेश्चन लिया था, तो टॉप डाउन बॉटम अप में जो मन करे वो करो। इनिशियली टॉप डाउन ना ज्यादा नेचुरल लगता है सॉल्व करते हो प्रॉब्लम्स को, तो लोग टॉप डाउन प्रेफर करते हैं, इनफैक्ट आई आल्सो प्रेफर टॉप डाउन। बट अगर ज्यादा हार्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो ना, तो बॉटम अप का एक तो एग्जीक्यूशन टाइम कम होगा, जहाँ पे प्लेटफॉर्म में लेट्स से टाइम लिमिट बहुत ज्यादा टाइट है, तो तुम्हारा टॉप डाउन हो सकता है टीएलई हो जाए, इवन दो कि दोनों असिम्प्टोटिकली सेम है। बॉटम अप हमेशा एग्जीक्यूट फास्ट करता है यूजुअली। और अगर बहुत हार्ड प्रॉब्लम्स कर रहे हो कि सेगमेंट ट्री साथ में यूज हो रहा है लेट्स से डीपी के ऑप्टिमाइजेशन के लिए, तो बॉटम अप में वो चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं कि तुम साथ में सेगमेंट ट्री लगा दिया, साथ में फेनविक ट्री लगा दिया टू ऑप्टिमाइज योर डीपी रिकरेंस। बॉटम अप में वो सब फायदे मिलते हैं। लेकिन इंटरव्यू तक के सोचो या इवन कोड फोर्सेस पे कैंडिडेट मास्टर तक सोचो, तो यार इस सब की कोई जरूरत नहीं है। टॉप डाउन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेन फोकस है क्या रिकरेंस बन रही है या नहीं। रिकरेंस बन रही है अगर तुम्हारी, तो यू आर गुड टू गो। अगला क्वेश्चन है आकाश, डीपी वेरिएशंस फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव। डीपी वेरिएशन फ्रॉम इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, यार इंटरव्यू के लिए तुम सीएससीएस का प्रॉब्लम सेट कर लो, तुम्हारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। उसके बाद लीड कोड पे जो प्रॉब्लम मिले उनको सॉल्व करते जाओ। लीड कोड पे तुम्हें डिजिट डीपी पे मिलेगी तो वो भी कर लो, मिलती है, मैंने देखे हैं उसकी प्रॉब्लम। आई वुड से it is okay to spend 1 hour on each 1 to 2 hours even a day on to try out all the possible variations। किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर किसी पे ज्यादा फोकस करना है तो that would be problems that actually cannot be put in a topic। डीपी ऑन ट्रीज कर लेना, that is important। और वन डायमेंशनल डीपी 2D 3D 4D, इसमें यार वही बात आ जाती है कि ना डायमेंशंस तो तुम्हारी थिंकिंग पे डिपेंड करती है। तो आई वुड से कि ज्यादा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करो बस। हाँ, बिट मास्किंग वगैरह में बहुत ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं, डिजिट डीपी में भी बहुत अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ट्रीज पे कर लोगे तो फायदा ही मिलेगा, डीपी ऑन ट्रीज से जितना फायदा मिलेगा और किसी टॉपिक से नहीं मिलेगा। डीपी ऑन ट्रीज से रिकर्शन स्ट्रांग हो जाएगी और डीपी दोनों डिवाइड एंड कॉन्कर भी अच्छा हो जाएगा। तो डीपी ऑन ट्रीज तो मैं टोटली रिकमेंड करता हूँ, इनफैक्ट मेरा फेवरेट। ऑल्सो रिकरेंस रिलेशन लिखने में, सर व्हाट आई मेंट इज दीस स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स आर डूएबल आफ्टर सम टाइम्स, बट कोड फोर्सेस पे नहीं होती। हाँ राइट अक्षय, देखो ये जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है ना, इनको स्टैंडर्ड समझ के मत करो, इनको खुद से ट्राई करो। एंड ये स्टैंडर्ड जब तुम सोल्यूशन देखे बिना खुद से करोगे ना, इसी सेम प्रोसेस से कि तुमने डीपी स्टेट बनाई, रिकरेंस बनाई और फिर सॉल्व किया फाइनल आंसर सोच के, बेस केस सोचे, तो जो डीप कोड फोर्सेस की प्रॉब्लम्स होंगी वो भी इजी लगेंगी। मैट्रिक्स चेन एक्सपोनेंशिएशन करो, खुद से करो, तो काफी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप इजी लगेंगी। एड कोडर की n स्लाइम्स है, मैट्रिक्स चेन एक्सपोनेंशिएशन ही है काइंड ऑफ, सॉरी मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन। तो यार ये तो सिंपली प्रैक्टिस से ही बनेगा, इसमें और कुछ आई डोंट थिंक और कोई एडवाइस है, प्रैक्टिस करो तो कुछ नहीं। ओके, नाइस ओवरव्यू, लव्ड योर इंट्यूटिव अप्रोच, थैंक्स वंशी, थैंक्स अ लॉट मैन। सर शुरू से पढ़ना हो, मृत्युंजय क्वेश्चन क्लियर नहीं समझ आया मुझे। सर शुरू से पढ़ना हो तक, हाउ मच टाइम वी कैन स्पेंड ऑन अ प्रॉब्लम। ओके हाँ आकाश, इस पे मैंने अभी रिसेंटली एक लिंक्डइन पे पोस्ट भी डाला था, यू कैन चेक दैट आउट। मेजरली यार एक प्रॉब्लम को जब उठाते हो ना तो 15 से 20 मिनट सोचो, अगर तो प्रोग्रेस है, मतलब कुछ हिंट भी आ गया, चाहे कोई ऑब्जर्वेशन कर ली, सोचते रहो। बट लेट्स से यार 15 से 20 मिनट हो गए और कोई भी प्रोग्रेस नहीं है, तो इट इज टाइम की कोई सोल्यूशन देख लो, वीडियो सोल्यूशन देख लो थोड़ा सा, या कोई एडिटोरियल पढ़ लो थोड़ा सा, जिससे हिंट मिले, और फिर दोबारा ट्राई करो यूजिंग दैट हिंट। अब देखो अब सॉल्व हो रही है, अगर फिर से सेम चीज होगी 15-20 मिनट तक कोई प्रोग्रेस नहीं है, तो फिर यार प्रोबेबली एक और हिंट लो या फिर सोल्यूशन पढ़ लो।
थैंक्स अक्षय, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय, आई डिड शेयर सम रिसोर्सेज, मेरे चैनल पे काफी कुछ है इससे रिलेटेड, कुछ प्रॉब्लम सेट्स भी शेयर करे। उसके अलावा मैं CF ब्लॉग्स यूज करता था, यू कैन यूज देम। एंड इस वीडियो में मैंने काफी सारी रिसोर्सेज शेयर करी थी। दिस वीडियो इज आल्सो ऑन माय चैनल, यू कैन चेक दिस वन आउट। इसमें बहुत सारी रिसोर्सेज शेयर करी हैं, CP एल्गोरिथम्स, लीड कोड की प्रॉब्लम्स कौन सी करो, एड कोडर का कॉन्टेस्ट, किक स्टार्ट, एंड बहुत कुछ शेयर करा इसमें मैंने। यू शुड डेफिनेटली चेक दिस वन आउट। Okay, I'll take last 2 to 3 questions. Thank you, Rohan. Shivani says, for beginners, please recommend resources. Shivani, if you're talking about DP resources, तो मेरी playlist follow करो starting से। बिल्कुल बेसिक से शुरू करो, है डिवाइड एंड कॉन्कर। स्टार्टिंग की 3 वीडियोस बिल्कुल बेसिक हैं। उसके अलावा यहाँ पे ब्लॉग्स मिलेंगे। और यार अगर बुक्स का शौक है ना, तो CLRS के ऊपर कुछ भी नहीं है। मतलब अगर बुक्स पढ़नी है ना, तो प्लीज मेरी YouTube वीडियोस भी मत देखना। अगर तुम बुक्स से पढ़ सकते हो ना यार, तो CLRS के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा। कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो कॉर्मेन है उसमें से पढ़, बेस्ट एवर रिसोर्स। ग्राफ्स पढ़ने के लिए CLRS पढ़ोगे, बेस्ट एवर रिसोर्स, अगर बुक्स पढ़ सकते हो तो। अदरवाइज यहाँ पे जो लिस्ट डाउन किया है, यू कैन ट्राई दीज आउट। ग्राफ्स के लिए अगर तुम्हें चैनल चाहिए तो एक एरिक्टो का चैनल पे भी DP की कुछ अच्छी वीडियोस हैं। वकार अहमद की ने आई गेस ग्राफ पे सीरीज बनाई थी, यू कैन ट्राई इट आउट। आई हैवंट ट्राइड इट, मैंने CLRS से पढ़ा था ग्राफ्स। उसके अलावा यहाँ पे जो मैंने रिसोर्सेज लिस्ट करी हैं, यू कैन ट्राई दीज आउट। यूजुअली आई प्रेफर CF ब्लॉग्स, जो कोड फोर्सेस पे ब्लॉग्स होते हैं यार, वो ना काफी स्मार्ट लोग लिखते हैं, तो मजा आ जाता है पढ़ के। आई प्रेफर तो थैंक्स पलक। Okay, there are some difficult partition problems like burst balloon, remove boxes, right? Burst balloon मैंने प्लान करा है अपने चैनल पे डालने का। Remove boxes is already on my channel, and there are very few resources available regarding these types. हाँ यार, क्रिएटिव कोडर तभी तो मेरा चैनल है। रिमूव बॉक्सेस ऑलरेडी है मेरे चैनल पे, एंड बर्स्ट बलून का मैंने सोच रखा है बनाने का। तो आई डू मेक प्रॉब्लम वीडियोस ऑन हार्ड कंटेंट। उससे भी ज्यादा हार्ड कंटेंट की वीडियोस चाहिए यार, तो एरिक्टो, आई फॉलो एरिक्टो। आई पर्सनली एडमायर हिम अ लॉट। तो अगर बहुत ज्यादा हार्ड कंटेंट कीजिए, जो जैसे कोड जैम के फाइनल राउंड्स हैं, यू कैन फॉलो हिम। ऑल्दो थोड़ा सा मेरी कॉम्प्रिहेंशन के बाहर हो जाता है वो सब, बट और ज्यादा हार्ड कंटेंट के लिए यू गो टू चैनल्स, you go to people who are like grandmasters. Please don't follow people who themselves are not experienced competitive programming telling you कि 5 स्टार कैसे बने या मास्टर कैसे बने। प्लीज ऐसे लोगों का एडवाइस मत लो। कोड फोर्सेस पे ब्लॉग्स पढ़ा करो, क्योंकि ये उन लोगों ने ही लिखे होते हैं जो एक्चुअल में खुद कुछ अचीव कर चुके हैं कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में। तो कोड फोर्सेस पे ब्लॉग्स पढ़ो, वहां से तुम्हें रिसोर्सेज मिलेंगे अच्छी चीजों की। CLRS पढ़ो, एंड CP के लिए भी बुक्स हैं जो कि अच्छे ऑथर्स ने लिखी हैं, जो खुद रेड या ऑरेंज रह चुके हैं। फॉलो दोस बुक्स, दैट्स माय रिकमेंडेशन। उसके अलावा मेरा चैनल है, उस पर आई ट्राई माय बेस्ट कि हार्ड से हार्ड प्रॉब्लम्स भी कर रहा हूँ, तो यू कैन ट्राई दैट आउट। हाँ हाँ, लिंग्लिश साइकिल अप्रोच, हाँ राइट, दैट आई जस्ट वांटेड टू रोस्ट इंटरव्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा नहीं लगता मेरे को एक अप्रोच रट लो की 2 पॉइंटर वाली, तो मैं बस उसका मजाक उड़ाने के लिए बनाई थी। वो इंटरव्यू में करके मत आना। और स्ट्राइवर प्लेलिस्ट फॉर ग्राफ, यार वो रिसेंटली आई है, मैंने चेकआउट नहीं करी। आई थिंक उसका चैनल भी अच्छा है, तो अगर ट्राई किया एंड उसकी अच्छी है तो व्हाई नॉट। मैंने वकार अहमद की तो चैनल प्लेलिस्ट काफी पुरानी है, तो आई हैड ट्राइड इट आउट, एंड आई थिंक ही हैज वर्कड अ लॉट ऑन इट। So that's why I used to recommend people to his playlist for graphs. Striver की भी try नहीं करी, but I have heard a lot of good reviews. You can try that out for graphs as well. Can I go for CP with Java? Of course, there is no CP DSA is language independent. Use C++, use Java, up to you. कोई बार नहीं है। मैंने देखा रेड कोडर्स बहुत सारे पाइथन यूज करते हुए देखे हैं मैंने, तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी बार फॉर एनी लैंग्वेज। C++ प्रेफर सिर्फ इसलिए हो जाती है यार क्योंकि बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं, तो सोचते हैं यही कर लो। प्लस थोड़ी सी एग्जीक्यूशन टाइम फास्टर है C++ का, दैट्स इट। कोड एंड कोड क्या, हाँ आई गेस यही तो चैनल रिकमेंड किया ना अभी मैंने उसके लिए, ग्राफ के लिए, राइट। आई गेस आई हैव टेकन इनफ क्वेश्चंस। लेट्स टेक वन लास्ट। किसी को कुछ आ रहा है डाउट तो बता दो, एल्स
let's just close this session then. Okay, I hope guys वीडियो पसंद आई, वीडियो नहीं इनफैक्ट लेक्चर, एंड पसंद आई तो डेफिनेटली डू चेक आउट माय चैनल एज वेल. Akshay is asking pre computation versus DP. यार तो काफी ओपन सा आकाश पूछ रहे हैं कि डीपी वर्सेस प्री कंप्यूटेशन, तो काफी यार ओपन सा क्वेश्चन है कि डीपी और प्री कंप्यूटेशन में तो मुझे रिलेशन नहीं समझ आया. आर यू आस्किंग टैबुलेशन और टॉप डाउन, मतलब टॉप डाउन और बॉटम अप पूछ रहे हो? तो अगर टॉप डाउन और बॉटम अप पूछ रहे हो तो दैट इज ऑलरेडी कवर्ड. एक बार ये जब वीडियो रिलीज हो जाएगी इस लेक्चर की तो चेकआउट कर लेना. टाइम स्टैम्प्स होपफुली डाल देंगे चैनल में जो हैं ऑर्गेनाइजर्स. रोहन सेज कि अपने चैनल पे लाइव आकर, हाँ डेफिनेटली रोहन ट्राई करूंगा, थोड़ा सा टाइम कम मिलता है और कोई इशू नहीं है. ठीक है गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी and I hope you all liked this lecture and I'll see you on my channel, I guess. Bye. Yeah, thank you so much, sir. Thank you so much, everyone. Thank you so much, sir, for this amazing session, and hope all students were enjoying a lot. And a took deep dive into dynamic programming. Our quiz winner for last day is Saptarshi Das from Saraj Mohan Institute of Technology College. He will be provided t-shirt from Payback, and also don't forget to attend today's quiz. Quiz link is also given in description box. Thank you all for joining this session.